વંદે ગુજરાત. નમસ્તે દર્શક મિત્રો, આજનો આપણો પ્રોગ્રામ ઇંગ્લિશ એમ્પાવરમેન્ટ ટ્રેનિંગ ફોર કોલેજ સ્ટુડન્ટના પ્રોગ્રામમાં હું હેતલ ત્રિવેદી આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. તો મિત્રો, આજે આ ટોપિક છે બહુ જ મસ્ત મજાનો છે, સ્પીક ઇન ઇંગ્લિશ. તો આપણે 22મો દિવસ છે આજે આ પ્રોગ્રામનો. 1 by 1 આપણે ઘણું બધું શીખ્યા, ઇંગ્લિશ ગ્રામર શીખ્યા, કમ્યુનિકેશન કેવી રીતે કરવું, એ બધું આપણે 1 by 1 શીખતા થયા. અને આજનો જે ટૉપિક છે સ્પીક ઇન ઇંગ્લિશ, એ પણ એટલો જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે જેમાં આપણે વધારે જાણીશું કે ઇંગ્લિશ એક એવી લેંગ્વેજ છે કે આપણે કોલેજમાં, આપણી સ્કૂલમાં ઇંગ્લિશ એ છે ને એક સબ્જેક્ટ તરીકે આવતું હતું કે ચાલો આપણે કોલેજ ગયા, સ્કૂલે ગયા અને ઇંગ્લિશ ભણી લીધું, વાત પતી ગઈ. પણ અત્યારે જે ડેઇલી આપણી લાઈફ છે કે ચલો આપણે એટલીસ્ટ ફોન યુઝ કરતા હોઈએ છીએ, ઇન્ટરનેટ સર્ફ કરતા હોઈએ છીએ, તો એ ટાઈમે બધું મોસ્ટલી આપણે જોઈએ કે બધું ઇંગ્લિશમાં જ અવેલેબલ હોય છે. તો આ ટાઈમે આપણે ઘણા બધા વર્ડ્સ જોઈને ઘણું બધું કન્ફ્યુઝન ક્રિએટ કરે છે કે આપણને એટલું સમજમાં પણ નથી આવતું. તો એ બધું આપણે કેવી રીતે કવર કરવું જોઈએ, કેવી રીતે ડેવલપ કરવું જોઈએ, તો આપણે વધારે સારી રીતે આપણું પરફોર્મન્સ આપી શકીએ આપણી પર્સનલ લાઈફમાં પણ. એ આપણા માટે ખૂબ જ જરૂરી થઈ ગયું છે આજના ટેકનોલોજીના યુગમાં, એ આપણે સૌ જાણીએ છીએ. તો બસ આ ટૉપિક એને લગતો જ છે. અને આજે આપણી જોડે સ્ટુડિયોમાં હાજર છે પિંકી કુમારી મેડમ, જે આપણને આ ટૉપિક વિશે વધારેમાં સમજાવશે. ઇંગ્લિશ કેવી રીતે ડેવલપ કરવું, એના માટે કઈ ટિપ્સ આપણે યુટિલાઇઝ કરવી જોઈએ, એ મેડમ આપણને સમજાવશે. નવી નવી મેથડ સમજાવશે કે જેનાથી આપણે આપણી લેંગ્વેજ ડેવલપ કરી શકીએ. તો હું હવે મેડમ વિશે અગર વધારેમાં કહું તો પિંકી કુમારી મેડમે 2018થી ફિનિશિંગ સ્કૂલમાં ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ ટ્રેનર તરીકે કાર્યરત છે. આ ઉપરાંત મેડમ વિશે એજ્યુકેશનલ એમની જે ક્વોલિફિકેશન છે, મેડમ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ થયા છે ઇંગ્લિશ લિટરેચરમાં. આ ઉપરાંત મેડમ અત્યારે PhD કરી રહ્યા છે ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ ટીચિંગમાં પણ. મેડમ આ જ ફિલ્ડમાં 10 વર્ષથી પણ વધારે એક્સપિરિયન્સ ધરાવે છે, જે ઘણી બધી ઇન્ટરનેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, મલ્ટીનેશનલ કંપનીમાં મેડમ એઝ અ ટ્રેનર તરીકે પણ કાર્યરત છે. તો હવે હું તમારો વધારે સમય ના લેતા મેડમને વિનંતી કરીશ કે આજનો જે ટૉપિક છે એના વિશે આપણને વધારે માહિતી આપે. ઓવર ટુ પ્રીતિ મેમ. Thank you, Heather. વેલકમ મેમ. Okay, so first of all, very good evening to everyone, and I would like to extend my gratitude to the Education Department, Government of Gujarat, Finishing School and Scope for organizing such a wonderful session for the improvisation of English communication skills to the students of Gujarat. And I welcome you all, my dear lovely students, on the day 22nd of English Empowerment Training Program, right? So first of all, I would like to tell you that we know that English is so important in our daily life. Everybody is aware about this, right? So from Kashmir to Kanyakumari, so many languages are spoken, but one language which is helping us right now, which is English. And in today's session, what I'm going to tell you, I'm going to talk about why English is important, what are the areas, what are the field where we are speaking English. At the same time, I'm going to talk about how we can create an environment at home where we will be able to speak English confidently, and I'll be sharing some tips and techniques through which you can focus on your English communication skills. So here we begin. So this is our topic for today, speak in English. So right now, everybody is aware about mother tongue. We love our mother tongue so much, right? क्यों ना हो मदर टंग से हम इतने ज़्यादा इंक्लाइंड, इतनी ज़्यादा, वाई? बिकॉज सब कुछ हमने आज तक अपने लाइफ में जो कुछ भी किया है, हंसी देखी है, खुशी देखी है, एवरीथिंग दैट इज़ डन बाय द हेल्प ऑफ मदर टंग. हम सब कुछ मदर टंग के थ्रू करते हैं. वी कम्युनिकेट, सेलिब्रेशंस, इंजॉयमेंट, सब कुछ मदर टंग के थ्रू हो रहा है, राइट? और हमारा जो इंक्लिनेशन है मदर टंग की तरफ वो काफ़ी ज़्यादा है. आई अंडरस्टैंड, और होना भी चाहिए, क्यों ना? ये तो हमारा, इसी लैंग्वेज में तो हमने अपना चाइल्डहुड बिताया है, सो वाई नॉट?
मदर टंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ, राइट? लेकिन अगर मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि अगर हमारे पास मदर टंग है, नो डाउट हम उसमें बहुत ही वेल वर्स्ड हैं, लेकिन अगर हम थोड़ी बहुत इंग्लिश की भी नॉलेज रखते हैं तो इट इज़ समथिंग ब्रेड ऑन बटर, राइट? यानी ब्रेड है, उसके ऊपर आपने बटर लगा दिया, समथिंग लाइक दैट. तो इंग्लिश की भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है हमारे लाइफ में. तो मदर टंग प्लस इंग्लिश ये आपके लिए एक वैल्यू एडिशन का काम करेंगे, राइट? तो इंग्लिश तो आप जानो और उसको मदर टंग के साथ रिलेट करके आप और भी न्यू होराइजन्स को टच कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगी इंग्लिश क्यों इम्पॉर्टेंट है. यू नो दैट जितने भी आप जो भी स्ट्रीम जाओ, वेदर यू गो फॉर साइंस, वेदर यू गो फॉर आर्ट्स, एक लैंग्वेज जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है एंड दैट इज़ योर इंग्लिश. आर्ट्स में भी आपकी कितने सब्जेक्ट्स हैं? इंग्लिश है, राइट? साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, लिंग्विस्टिक्स, मास कम्युनिकेशन, ये सारे आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं. इन सिमिलरली वे अगर आप साइंस का सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो तो उसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एवरीथिंग वहाँ पे सारे वो इंग्लिश में है. मोस्ट ऑफ द बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च पेपर, सब कुछ वहाँ पे इंग्लिश में है. और आप देख सकते हो एविएशन सेक्टर में, टूरिज़्म सेक्टर्स में, एवरीवेयर टूरिज़्म डिपार्टमेंट में जाते हैं, इन दैट प्लेस ऑल्सो इंग्लिश इज़ रिक्वायर्ड. फिर इंग्लिश इज़ लैंग्वेज ऑफ जॉब इन MNCs. आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी का अगर आप एक जॉब एडवर्टिजमेंट देखते हो तो वहाँ पे ये बताते हैं कि द पर्सन शुड बी गुड इन रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन. वाई? सो दिस इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ इंग्लिश. तो इंग्लिश हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तो LPG एरा है, दैट इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. और इस LPG एरा में एक लैंग्वेज जो सभी को जानना चाहिए एंड दैट इज़ इंग्लिश. तो इंग्लिश, गो एनीवेयर, इंग्लिश इज़ एवरीवेयर. जहाँ भी जाओ इंग्लिश आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके, एक चीज़ आप और देखेंगे कि इंग्लिश इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज एट द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट एज पर द आर्टिकल 348 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. यस, अगर आपको अभी कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, राइट, कुछ भी है, तो चलो रीजनल कोर्ट्स में यू कैन गो विद योर मदर टंग. लेकिन अगर आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपने एविडेंसेस को प्रेजेंट करना है, फाइलिंग करनी है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, देन एट दैट टाइम you have to write everything in English. Then only it will be accepted there. So that's why आप देख सकते हो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ने भी इस लैंग्वेज को कितना एम्फेसिस दिया है. तो आई एम 100% श्योर नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, राइट? बिकॉज इट इज़ अ लीगल मैटर. अब आप देखो, इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लिंगुआ फ्रैंका. आप हर इज़ अ लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड. लिंगुआ फ्रैंका लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, हर जगह. अब आप देखो, मैंने हाईलाइट किया है कि आप मेडिकल और फार्मास्यूटिकल मैटर्स देख लो. मेडिकल और फार्मास्यूटिकल्स मैटर, यू विल नॉट बिलीव कि अगर आप एक पैकेज कोई भी मेडिसिन खरीदते हो, राइट, उस पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, उसके कंटेंट्स वगैरह वगैरह, वो एवरीथिंग इज मेंशन इन इंग्लिश. You buy a medicine, can you see that anything is written in Hindi or anything like that? No. So that is why there is a need कि हमें इस लैंग्वेज के इम्पोर्टेंस को समझना है. ओके, आफ्टर दैट इंश्योरेंस मैटर आप देख लो, वहाँ पे भी देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ इंग्लिश. सो इंग्लिश इज़ देयर, इंग्लिश इज़ अराउंड अस, हमारी चारों ओर ये स्प्रेड है और हम इससे बच नहीं पा रहे. हम इससे सराउंडेड ऑलरेडी हैं, बस हमें थोड़ी बहुत टेक्निक्स यूज़ करनी है जिसके थ्रू हम इसे और भी अच्छा करें, और भी इम्प्रोवाइजेशन अपने अंदर लाए. वी ब्रिंग मोर इम्प्रोवाइजेशन, वी ब्रिंग मोर रिफाइनमेंट, एंड दैट इज़ नॉट टू हार्ड. ये बहुत ही आसान है. आने वाले सारे स्लाइड्स में मैं ये सारे टेक्निक्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हूँ. एंड आप अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन साथ में रखो ताकि मैं जो भी एक्टिविटीज़ करा रही हूँ उसके साथ आप एकदम से पार्टिसिपेट करो एंड यू enjoy the session. Be confident, be attentive in the session so that you can get the maximum out of this session, right? तो अब आप देखो, मैं आपको बताऊंगी दिस इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड रिसर्च. अभी देखो, यू आर अ स्टूडेंट फ्रॉम गुजरात, राइट? आपने कुछ रिसर्च लिखा किसी भी टॉपिक पे, राइट?
एंड अगर आपको वो अपना रिसर्च की फाइंडिंग शेयर करनी है किसी और स्टेट के स्टूडेंट के साथ, फॉर एग्जांपल ही मे बी अ तमिलियन, ही मे बी फ्रॉम सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, और ही मे बी फ्रॉम एनी अदर कंट्री, तो वो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे होगा, वो कम्युनिकेट आप कैसे करोगे? यू नीड अपने रिसर्च फाइंडिंग को एक रेलिवेंट मोड देने के लिए यू नीड एन लैंग्वेज विच इज़ इंग्लिश. सो दैट्स वाई रिसर्च फाइंडिंग में, और इट्स अ डिजिटल डोर ओपनर. नाउ you can see the impact how digitally we are active now. Not only in the whole India is now digitally active, whole world I would say, पूरी दुनिया डिजिटल एक्टिव हो गया. और डिजिटल एक्टिव में कम्युनिकेशन भी है ना अभी, दैट इज़ इन इंग्लिश. ऑल द गूगल, आप कुछ भी नेट सर्फ करते हो एंड एवरीथिंग, सो एवरीथिंग, ऑल द रिक्वायरमेंट्स एंड एवरीथिंग इज़ देयर इन इंग्लिश. तो ये एक डिजिटल डोर ओपनर है एंड इट्स अ वैल्यूबल टूल फॉर एजुकेशन. इंग्लिश है तो एजुकेशन आपकी आसान हो जाएगी. बुक्स जो है हायर एजुकेशन की, हायर एजुकेशन में आप जो MBBS कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, लॉ कर रहे हो, एनी काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन यू आर ऑप्टिंग, तो वो चीज़ जो हो रही है दैट इज़ डन थ्रू इंग्लिश. सो आई सजेस्ट दैट इस लैंग्वेज को हम आज इसके टेक टिप्स और टेक्निक्स अच्छे से समझेंगे एंड वी आर गोइंग टू वर्क on this language. I know कि आपने तो काम ऑलरेडी शुरू कर दिया है, you people have started working, लेकिन आज थोड़ा और भी स्पीड करेंगे, right? So this is really going to help you out in all the situation. So English is there, English is for us and we will elaborate it more. ओके, बिजनेस. अगर आप एक बिजनेस, इट्स नॉट लाइक कि यू आर इन अ जॉब और आपको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट. अगर आप बिजनेस वर्ल्ड में भी चाहते हो, अगर आप अपने बिजनेस को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना चाहते हो, देन दैट टाइम ऑल्सो यू नीड अ इंग्लिश, राइट? यू नीड इंग्लिश. मुझे अपना एक बिजनेस ओपन करना है, एक छोटा सा बिजनेस, वॉट एवर आपको एक फैक्ट्री सेटअप करनी है, आपको डिमांड एंड सप्लाई, अपने कस्टमर से बात करना है, अपनी ईमेल लिखना है, हाउ यू आर गोइंग टू डू द ड्राफ्टिंग, टेलीफोनिक कॉल्स एंड एवरीथिंग. So it has to be done in a language which is very common for everyone, and that is our second language. English in most of the countries it is now considered as a second language. अभी मैं आपको हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के बारे में बता दूं कि the fastest spreading language in the human history, English is spoken at a useful level by some 1.75 billion people worldwide. That's 1 in every 4 of us is speaking English. So come on, वी हैव टू मास्टर इट. हमें इसे मास्टर करना है, हमें इसे इम्प्रूव करना है. एंड आई होप जो भी whosoever इज वाचिंग दिस विल अग्री. अगर आप अग्री हो तो आप एक थम्स अप दे दो मुझे, राइट? यू कैन राइट कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट. आप अग्री करते हो कि ये इम्पॉर्टेंट है? डू यू अग्री? तो यू कैन सेंड मी अ व्हाट्सअप, यू कैन सेंड मी अ मैसेज ऑन फेसबुक, राइट? सो इंग्लिश इज देयर, इंग्लिश इज फॉर अस. सो लेट अस मूव अहेड. और भी जानते हैं, राइट? तो अभी देखो, इंग्लिश इज़ अ करियर बूस्टर, नो डाउट. वट एवर करियर आप सेलेक्ट कर रहे हो, वट एवर करियर यू आर सिलेक्टिंग, आप होटल में जाओ, आप एविएशन में जाओ, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जाओ, आप साइंस में जाओ, ट्रैवल इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट्स, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, मीडिया, वट एवर योर इंडस्ट्री इज, इंग्लिश आपके साइड में है खड़ा. इंग्लिश इज़ देयर फॉर योर इम्प्रोवाइजेशन, फॉर योर अपलिफ्टमेंट, फॉर योर डेवलपमेंट, राइट? तो इसके लिए कहा जाता है कि जो लोग इंग्लिश सीख लेते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर गोइंग टू क्लाइम द लैडर ऑफ सक्सेस वेरी फास्ट. सो दैट्स वाई हमें इंग्लिश को एक करियर बूस्टर के नाम से भी जाना जा रहा है, राइट? तो आप लोगों ने भी जो भी फील्ड अभी चुना है, आप देखो, यू राइट इट, आप लिखो, मुझे कमेंट करो फेसबुक पे इफ़ यू आर वॉचिंग मी कि अगर क्या आपके प्रोफेशन से इंग्लिश रिलेटेड है. इज़ इंग्लिश रिलेटेड विथ योर प्रोफेशन? चलो, आप मैथमेटिशियन हो, राइट? आप साइकोलॉजिस्ट, आपने साइकोलॉजी लिया है, इज़ इट रिलेटेड विथ योर प्रोफेशन? आप अपने लाइफ में आपने जो गोल सेट किया है, क्या उसके लिए इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है? डू यू फील लाइक दिस? कम ऑन, कम्युनिकेट, ताकि हमें पता चले रियली इंग्लिश इज़ देयर फॉर अस. ओके, now you can see that English is a language of career opportunities, right? I will tell you कि अभी corporate जो है, corporate as I told you in the beginning also, कि corporate में अगर आप काम करना चाहते हो, right? अभी तो corporate like you can see there's so many job opportunities available in the corporate world. आप कितने ऑन जॉब ट्रेनिंग कर रहे हो, उसमें भी प्लेसमेंट्स हो रहे हैं, सब कॉर्पोरेट कंपनी आती है और आपको हायर करके ले जाती है, राइट? और वहाँ पे आपने देखा होगा कि कॉर्पोरेट्स में चेक करते हैं, ओके वेदर द पीपल आर कम्युनिकेटिव, वो ईमेल लिख पाते हैं, क्या वो बात कर पाते हैं, फ़ोन पे बात कर पाते हैं,
डू दे हैव कॉन्फिडेंस इन इंग्लिश? सो वो चेक करते हैं. दे वांट पीपल टू बी वेरी गुड इन द रिटन एंड verbal communication, that is English speaking skills. So that's why English important है हमारे लिए. और ऐसा बिल्कुल भी आप डिफ़िकल्ट इसको बिल्कुल भी मत समझो, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी. बस हमारे पास एक इंथुजियाज़म होनी चाहिए, एक इंक्लिनेशन होनी चाहिए, तभी हम इस लैंग्वेज को सीख पाएंगे. उसके बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन देख लो. आई होप आप लोग में से बहुत लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, राइट? कुछ लोग बैंक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ एसएससी, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन है उसमें भी इंग्लिश इज़ देयर. एक तो पेपर रहता है, कुछ क्वेश्चंस रहते हैं इंग्लिश से, राइट? उसके बाद आप जब इंग्लिश सीख जाते हो तो यू विल नॉट गेट ओनली अ जॉब इन योर स्टेट. और हमें कन्फाइंड रहना भी नहीं चाहिए. जब हमें अपॉर्चुनिटी नॉक करती है तो हमें अपने अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए. और फिर हमें उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने के लिए वो सारे चीज़ हमारे पास होनी चाहिए. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे बैंक में जॉब चाहिए, राइट? तो मुझे बैंक में जॉब चाहिए तो मैं वर्कआउट करूँगी ना, अच्छा बैंक में जाना है, चलो फिर कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए मेरे अंदर, व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स शुड आई हैव. तो आई विल चेक कि बैंक में जो मुझे जॉब चाहिए तो बैंकिंग का कोई एक कोर्स ले लूँ, या फिर मेरी जो कॉमर्स का डिग्री है वो काम आएगी, या फिर कोई और डिग्री मुझे काम आने वाली है. तो आई हैव टू गो फॉर अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च. तो थोड़ा रिसर्च करेंगे तो हमें पता चलेगा क्या मेरे जॉब में इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है. इज़ इंग्लिश इम्पॉर्टेंट इन माई जॉब? इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर माई सिलेक्शन. क्या मेरे सिलेक्शन के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है? तो आपको इसके ऊपर फोकस करना, यू हैव टू फोकस ऑन दैट. सो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि क्राइटेरिया हम सेलेक्ट करेंगे. आप एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हो, आप ई कॉमर्स में जाना चाहते हो, सेलेक्ट योर फील्ड एंड सी वेयर इंग्लिश इज़ एप्लीकेबल. इज़ इंग्लिश एप्लीकेबल इन योर फील्ड? आपके फील्ड में एप्लीकेबल है. दैट्स वाई द टॉपिक इज स्पीक इन इंग्लिश, बिकॉज हम आज रेलिवेंस बता रहे हैं कि आपने जिस इंडस्ट्री में जाना है, क्या उस इंडस्ट्री में आपकी इंग्लिश रिक्वायर्ड है. ओके, उसके बाद मैं बात करूँगी प्रिपेयर्स यू फॉर द फ्यूचर. वॉट एवर आप फ्यूचर में, आपको ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं. यू कैन सी हाउ डिजिटली वी आर नाउ कनेक्टेड विथ ईच अदर, राइट? अभी हम कैसे कनेक्टेड हैं? वी आर डिजिटली कनेक्टेड विथ ईच अदर. और आप दुनिया में लाइक यू कैन नॉट अटेंड ओनली लेक्चर्स इन इंडिया, बट यू कैन ऑल्सो अटेंड इंटरनेशनल लेक्चर्स. यू कैन अपडेट योर सेल्फ इंटरनेशनली. सो एवरीथिंग. सो आप देख सकते हो इंग्लिश इज़ देयर. So I'm 100% sure कि now you would have understood कि how English is important in your life. So this was my introduction of speak in English. क्यों ज़रूरी है, क्यों बोलना ज़रूरी है, कहाँ से हमें हेल्प करने वाला है, और जितनी जल्दी आप इसको मास्टर करो उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है. सो आपकी जो जर्नी है, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी ब्यूटिफुल, करियर वाइज, पर्सनैलिटी वाइज, प्रोफेशनली, एवरीथिंग. सो यू आर गोइंग टू rock in your life. You're going to enjoy your life if you're comfortable with this English. Personality enhancement भी है and everything is there. So I'm 100% sure कि आप इस बात कर agree करते हैं. Okay, so अब मैं आपको एक बहुत important बात आज बताने वाली हूँ. देखो, if I talk about body and if I talk about language, एक तरफ हमारा बॉडी कैसे फंक्शन करता है और दूसरी तरफ हमारा लैंग्वेज कैसे फंक्शन करता है. तो बॉडी को फंक्शन करने के लिए what is required? ब्लड ज़रूरी है ना. शरीर, हमारा जो शरीर है वो कैसे फंक्शन करेगा, काम कैसे करेगा? ब्लड इम्पॉर्टेंट है. फिर बोन्स इम्पॉर्टेंट है, हड्डियाँ इम्पॉर्टेंट है. फिर मसल्स इम्पॉर्टेंट है, और फिर वेन्स इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. तो ब्लड क्या करता है? बॉडी रिक्वायर्स ब्लड टू फंक्शन. बॉडी में ब्लड है तभी शरीर काम करेगा. अगर बॉडी में बोन्स हैं, हड्डियां हैं, तो एक सपोर्ट दे रहा है हमारी बॉडी को. ठीक है. फिर मसल्स क्या करते हैं? अपने बॉडी को स्ट्रेंथ देते हैं. ठीक है. और वेन्स जो क्या है वो सिग्नल पासन करते हैं. उसी तरीके से अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हो, राइट, तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको क्या क्या करना है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ग्रामर सीखना है, बिकॉज ग्रामर इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज.
लैंग्वेज कैसे फंक्शन करने वाली है? अगर ग्रामर का नॉलेज है आपके पास, ग्रामर का नॉलेज है, लैंग्वेज इज गोइंग टू फंक्शन, राइट? सो कहा गया है कि ग्रामर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, एंड आई होप कि पहले जितने एपिसोड्स हैं आपने उसमें सारे ग्रामर के रूल्स एंड रेगुलेशन और ट्रिप्स को क्लियर किया है. सो फॉर एनी लैंग्वेज टू फंक्शन, ग्रामर इज रिक्वायर्ड. उसके बाद जैसे मैंने बोली, हमारे शरीर में हड्डियां हैं और वो हमें एक सपोर्ट देते, एक फॉर्म देते हैं. उसी तरह से लैंग्वेज को बोलने के लिए वोकैबुलरी की रिक्वायरमेंट है. अगर आपके पास अच्छी खासी वोकैबुलरी है तो आप अपने लैंग्वेज में जान डाल सकते हैं. यू कैन ऐड अ वेरी गुड सपोर्ट टू योर लैंग्वेज. ओके. सेकेंडली, जैसे मसल्स देते हैं स्ट्रेंथ हमारे बॉडी को, उसी तरह से सेंटेंस अगर हम अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बोलते हैं, ब्यूटिफुली सेंटेंस को वर्ड्स के साथ सजा कर बोलते हैं, तो हमारे लैंग्वेज को भी क्या मिलता है? स्ट्रेंथ मिलता है, राइट? तो लैंग्वेज को स्ट्रेंथ देने के लिए हमें सेंटेंसेस को बहुत सुंदर सुंदर से सजा कर बोलना है, राइट? और आपको फ्रेम इट राइट तो ऑलरेडी आपने सेशन किया है और आपने उसमें देखा है कि हमें सेंटेंसेस को कैसे अच्छे तरीके से सजाकर प्रेजेंट करना है, राइट? तो मैंने आपको अभी तक 3 बातें बताई हैं. पहला बताया है ग्रामर अच्छे से मास्टर करेंगे, राइट? उसके बाद मैंने आपको बताया है वोकैबुलरी भी अच्छे से आपको मास्टर करनी है, बिकॉज वर्ड्स होंगे तभी आपके पास सेंटेंसेस बनेंगे, राइट? तो ग्रामर, वोकैबुलरी एंड सेंटेंसेस. फोर्थ वन इज प्रोनाउंसिएशन. यस, कभी कभी ऐसा होता है कि वी मिस द प्रोनाउंसिएशन. हम ग्रामर सीख लेते हैं, हम वर्ड्स भी सीख लेते हैं, हम सेंटेंसेस भी बना लेते हैं, बट हम प्रोनाउंसिएशन पार्ट क्या करते हैं? स्किप कर जाते हैं. What I would recommend कि आप क्या करेंगे, यू पीपल विल ऑल्सो साथ साथ लेकर चलना है. ग्रामर भी साथ लेना है, वोकैबुलरी भी साथ लेनी है, सेंटेंस भी बनाएंगे और प्रोनाउंसिएशन भी साथ में रखेंगे. सो दिस इज़ अ कॉम्बो. दिस इज़ अ वेरी फाइनेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एनी लैंग्वेज टू बी स्पोकन, राइट? सो आई होप you are getting my point कि why all these criterias are important. Yes. Now अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि can you pick up a guitar and start playing? पॉसिबल है कि मैं आपके हाथ में गिटार दे दूँ और बोलूँ कि चलो भाई इसको प्ले करके दिखाओ. इज़ इट पॉसिबल फॉर यू पीपल? मुश्किल है ना, क्योंकि अगर हमने कभी गिटार के म्यूज़िक सिस्टम को समझा ही नहीं, उसके फंक्शन को समझा ही नहीं, तो हम एट वंस तो गिटार बजाना नहीं सीख सकते. और गिटार बजाएंगे भी तो कैसी कैसी आवाज़ें निकलेंगी, राइट? वी विल नॉट बी कंफर्टेबल विद दैट. तो आप देख सकते हो कि एट वंस हम गिटार बजाना नहीं सीख सकते. इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस, राइट? उसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूँ कि चलो कल एग्ज़ाम है, आप फटाफट पढ़ाई कर लो, तो कैन यू गेट गुड मार्क्स? कैन यू गेट गुड मार्क्स जस्ट स्टडिंग अ डे बिफोर योर एग्जामिनेशन? ऐसा हो सकता है? नो. यू नीड टू प्रैक्टिस, यू नीड टू रिवाइज, you need to repeat it again. You need to go through all the content. You need to revise the content. You need to see the question bank. You need to see the objective question, MCQs, everything. एक rigorous practice होगा. उसमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं, वो कैसे पूछे जा रहे हैं एंड ऑल दैट, तो ही आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जो है मतलब परफेक्ट होने वाली है. क्यों? क्योंकि जिस तरह से आप एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करते हो उसी तरह से आपको इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी तैयारी करनी होगी, राइट? सो यू कैन सी दैट किसी भी चीज़ में मास्टरी करने के लिए हमें उसमें कुछ टाइम स्पेंड करना होगा. वेदर आप गिटार बजाने जा रहे हो या अपने एग्ज़ाम्स में, एनी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आपको दे दिया जाए, अगर आपने उसमें कभी पहले आपने उसको नहीं बजाया, इवन तबला, हारमोनियम और एनी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हम उसको नहीं बजा सकते अनटिल एंड अनलेस we train our mind to use that device, to use that equipment, to use that instrument, right? तो same is with language. Language के लिए भी हमें same चीज़ करनी है, ठीक है? और करना क्या है, हम कैसे कर सकते हैं इसके लिए? इसके लिए हमारा क्या है, आपको
कुछ चीज़ें करनी है। 4 कोर स्किल्स पे आपको फोकस करना है, ठीक है। द फर्स्ट कोर स्किल्स इज लिसनिंग। आप लिसन करो, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। ये जो कोर स्किल्स हैं आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके लाइफ में। आई विल इलाबोरेट ईच ऑफ दिस स्किल्स इन डिटेल इन द कमिंग स्लाइड्स, राइट। तो मैं ये सारे स्किल्स के बारे में आपसे बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करूँगी, कैसे करना है, कब करना है, क्या मेथडोलॉजी फॉलो करनी है। आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस स्किल्स इन डिटेल विथ यू पीपल। लिसनिंग करेंगे, स्पीकिंग करेंगे, रीडिंग करेंगे, राइटिंग करेंगे, किस तरह से करेंगे, ऑल दिस स्किल्स विल बी टेकन। इस स्किल्स को प्रैक्टिस करने का तरीका क्या होना चाहिए, हाउ वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस द स्किल्स। सो ऑल द स्किल्स के बारे में हम बात करते हैं। देखो, व्हाट आई फील कि इन स्किल्स को प्रैक्टिस करने के लिए हमें अपने माइंड की मदद लेनी पड़ेगी। वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ आवर माइंड। वी कैन कंपेयर, हम कंपेयर कर सकते हैं अपने माइंड को एक कंप्यूटर से। वी कैन कंपेयर आवर माइंड इज़ अ कंप्यूटर। आपको नहीं लगता? बिकॉज गॉड हैज़ गिवन दिस माइंड। और आप अपने लैपटॉप की बात करो, मोबाइल फ़ोन की बात करो, इसमें तो एक लिमिटेड जीबी डेटा होता है, वेरी वेरी लेस डेटा, क्या बोलते हैं, डेटा स्पेस, राइट। बट इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट आवर माइंड, इसमें तो मिलियंस ऑफ जीबी स्टोरेज है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ जीबी स्टोरेज है। अगर हम इसे अटेंटिवली यूज़ कर सकते हैं देन वी कैन सी अ ड्रास्टिक चेंज इन आवर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, राइट। सो कोर स्किल्स को प्रैक्टिस करने के लिए रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, वी हैव टू यूज़ आवर माइंड, राइट। सो आप देख सकते हो कि वी कैन कंपेयर आवर माइंड टू अ कंप्यूटर। कैसे? अब आप देखो, वेरी सिंपल एग्जाम्पल। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जो भी कंप्यूटर पे काम करते हैं, राइट, वो कहाँ पर आता है? इट इज़ कमिंग ऑन द मॉनिटर, दैट इज़ द स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर, राइट। सिमिलरली हमारे माइंड में जो भी चल रहा है, वॉट एवर द थिंग्स हमने सोचा, हमारे थॉट्स, वो कहाँ पे आ रहे हैं? हमारे टंग पे आ रहे हैं, राइट। तो जिस तरीके से कंप्यूटर का स्क्रीन मॉनिटर है, इन सिमिलरली हमारा माइंड का जो स्क्रीन है वो टंग है। तो माइंड में जो भी चल रहा है, वॉट एवर द थिंग्स आर गोइंग ऑन इन आवर माइंड, दैट इज बीन रिफ्लेक्टेड टू आवर टंग। माइंड में कुछ अच्छा है तो हम अच्छा बोलेंगे एंड दैट इज रिफ्लेक्टेड बाय आवर टंग। माइंड में कुछ बुरा चल रहा है, इफ एनी बैड हैपनिंग, और आप सैड हो, दैट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड टू टंग। तो जो कंप्यूटर में काम हो रहा है वो स्क्रीन पे आ रहा है, और जो माइंड में काम हो रहा है वो कहाँ पे आ रहा है? टंग में। तो माइंड को आप जितना एफिशिएंट बनाओगे, जितना पॉजिटिव वाइब्स उसके अंदर डालोगे, जितने आप इंग्लिश लैंग्वेज से अपने माइंड को सराउंड करोगे, उतना ज़्यादा वो टंग पे रिफ्लेक्ट होकर आएगा, राइट। सो दैट इज़ वाई आई वुड लाइक टू फोकस कि कंप्यूटर और माइंड में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। आवर माइंड इज़ ऑल्सो लाइक अ कंप्यूटर, इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है। और आप देख सकते हो कि इन कंप्यूटर देर इज़ अ मॉनिटर, इन आवर माइंड ऑल्सो। माइंड में क्या है? आवर दैट एवरीथिंग इज रिफ्लेक्टेड टू द टंग। और दो तरह के मेमोरीज हैं, जैसा आपने बोला कि मॉनिटर में, कंप्यूटर पे क्या होता है? रैम होता है, दैट इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड देन देर इज़ अ हार्ड डिस्क, राइट। उसके बाद आपने देखा कि हमारे माइंड में भी दो तरह का माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड एंड दैट इज़ कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड को हम कंपेयर कर सकते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, दैट इज़ रैम। कॉन्शियस माइंड क्या होता है? जो आप डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ आप करते हो, कितने कॉन्शियसली करते हो, राइट। आपको कब उठना है, आपको कब ब्रेकफास्ट करना है, आपको कब कॉलेज जाना है, कॉलेज से कब वापस आना है, राइट। ऑल दिस यू आर यूजिंग योर कॉन्शियस माइंड। लेकिन हमारे दिमाग के पीछे पीछे एक और माइंड है, दैट इज़ सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड में आपके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, और कभी कभी आप देखो कि आप कोई चीज़ भूल रहे होते, लेकिन वो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको याद दिलाता है। समथिंग इज गोइंग ऑन इन माई सबकॉन्शियस माइंड, राइट। तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हो, राइट,
और आप रेगुलरली इन कोर स्किल्स के साथ प्रैक्टिस करते हो, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है. इट गोज ऑन इन योर सबकॉन्शियस माइंड, और जब भी कभी आपको ज़रूरत होती है देन दैट इन्फॉर्मेशन कम्स आउट. बचपन में हमने बहुत सारा कुछ पढ़ा है, राइट? और ऑटोमेटिकली कभी ऐसा होता है कि आपके टीचर आपको बोलते हैं, हो कम ऑन स्पीक ऑन दिस टॉपिक, एंड डेफिनेटली एट दैट टाइम यू आर यूजिंग योर सबकॉन्शियस माइंड एंड द थिंग्स आर कमिंग. यू आर टेलिंग, oh ma'am, let me remember, oh I have studied this somewhere and I want to put this example in my speech. So why? This is the magic of the subconscious mind, right? तो जितना भी आप अपने दिमाग में फोल्डर्स बना रहे हो, राइट, आई हैव सीन कि देखो अपना जो ये दिमाग है, it has got million space. लैपटॉप डेस्कटॉप में तो है, लेकिन गॉड ने हमें एक हेड टॉप दिया है. हेड टॉप में आपको बहुत सारे फोल्डर्स बनाने हैं. यू हैव टू क्रिएट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोल्डर. कीप इट यूजिंग ऑल द टाइम. बहुत सारे फोल्डर्स बनाएंगे और उसको बहुत बार हम यूज़ करेंगे, राइट? वी विल कीप ऑन यूजिंग ऑल दिस फोल्डर्स, राइट? तो यू हैव टू यूज़ इट. हेड टॉप हमारे दिमाग के लिए हमारे दिमाग के एक्सरसाइज के लिए इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट. तो वाई नॉट यूज़ दिस ब्रेन एंड वी विल क्रिएट फोल्डर. हम एक्सपोज करेंगे, वी विल एक्सपोज आवर सेल्फ इन आवर डे टू डे लाइफ एंड वी विल डू इट, राइट? तो आप देख सकते हो कि हेड टॉप जो है हमारे डे टू डे कॉन्वर्सेशन में आप जो भी काम करते हो, एवरीथिंग इज़ बीन स्टोर्ड इन आवर हेड टॉप. नाउ यू कैन सी दैट इस हेड टॉप में आपको बहुत सारे फोल्डर्स बनाने हैं. लिसनिंग का फोल्डर बनाना है, कुछ ना कुछ सुनना है. रीडिंग का फोल्डर बनाना है, कुछ ना कुछ पढ़ना है. ऑन अ डेली बेसिस आई एम एडिंग दिस, ऑन अ डेली बेसिस. ऐसा नहीं ओ चलो आज संडे है, चलो हम कुछ पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. इट शुड बी ऑन अ रेगुलर बेसिस. बिकॉज 4 कोर स्किल्स तो मैंने बताया, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग. बट बाकी के 3, practice and practice, because practice makes a man perfect. Practice leads to proficiency, right? So you have to keep a folder, you have to prepare a folder, and you have to keep it using all the time. आसानी से. there is no like चलो आज मैं बहुत टफ सा, अपने लेवल के अनुसार आप अपने मटेरियल्स को सेलेक्ट करो and then you have to prepare it. ओके, सबसे पहले मैं बात करूँगी लिसनिंग की. यू नो, लिसनिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. आप देखो जब एक छोटा बच्चा धरती पर आता है, व्हेन ही इज़ बॉर्न ऑन दिस अर्थ, देन व्हाट ही डज, बिफोर स्पीकिंग इवन अ सिंगल वर्ड फ्रॉम हिज माउथ, ही लिसन्स, ही एब्जॉर्व्स like what is happening. He observes everything and absorbs all the happenings inside him. Okay, ऐसे करते हैं. Okay, इसको cut बोलते हैं. Okay, mama is cutting vegetables. Okay, this action is known as cutting. Okay, this action when he is jumping, oh, this action is known as jumping. So first of all, if you are learning a second language, तो आपको क्या करना है? Imitate करना. You have to imitate people who are good speakers of English, or maybe he's your friend, your mother, father, anyone, your teacher, any of your friends. So you have to imitate them. So listening is really a very good activity for improving your English. I must say, आप जितना लिसन करोगे ना उतना स्पीक करोगे, और आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना ये लिसनिंग का फोल्डर एक्टिव हो जाएगा. तो आप सभी से लिसनिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. आप जितना लिसन करते हैं आपकी वोकैब्स इम्प्रूव होती है, आपकी प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होती है, राइट? और मैंने एक वर्ड ऐड किया है इमिटेशन. देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट. इमिटेट, हाँ, हम फॉलो कर सकते हैं. अगर हमसे कोई अच्छा बोल रहा है, इफ़ एनीबडी इज़ हैविंग अ गुड प्रोनाउंसिएशन, देन वी शुड लर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन. वी शुड लर्न फ्रॉम दैट पर्सन. नथिंग प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट? And then I will say कि language is learned by imitation and develop sources of listening. आप अपने लेवल के अनुसार सेलेक्ट करो सोर्सेज. बिकॉज ऐसा नहीं कि आप एकदम बिगिनर हो और आपने एकदम इंग्लिश मूवी लिसन करने के लिए लगाया. सो आई वुड नॉट रिकमेंड कि ऐसा होना चाहिए, राइट? आप ऐसा लिसन करो जो आपके लिए आपके लेवल के अनुसार हो, ठीक है? आई वुड से कि यू कैन वॉच कार्टून्स. आप कार्टून्स देखो, उसमें कितनी सिंपल और बेसिक इंग्लिश होती है, राइट? सो दैट इज़ अ वेरी नाइस. सो यू लिसन अकॉर्डिंग, जिसका जो लेवल है उसके अनुसार आप लिसन करो. एंड आई एम 100% श्योर कि आप ऐसा करोगे एंड यू आर गोइंग टू बी प्रोफिशिएंट इन इट,
राइट आपकी फ्लुएंसी, आपकी डेवलपमेंट होने वाली है. सो दैट इज़ वन क्राइटेरिया. ओके, मैं आपको एक इमिटेशन टेक्निक बताती हूँ. अब इमिटेशन टेक्निक क्या है कि आपको ईयर एंड माउथ कोऑर्डिनेट करना है. ईयर एंड माउथ कोऑर्डिनेशन है. ईयर एंड माउथ, ईयर एंड माउथ. सुनना है, बोलना है, सुनना है, बोलना है. लिसन, रीड. आपने कुछ लिसन किया, रीड. लिसन, रिपीट. ओके, लिसन, रिपीट. लिसन, प्रैक्टिस. ये चीज़ होना चाहिए. सो आप जितना लिसन करोगे, आप लिसन करो, एक बार उसको रीड कर लो, लिसन करो और रिपीट करो, लिसन करो और प्रैक्टिस करो. नोबडी विल स्टॉप यू. कुछ नहीं होने वाला. आप एक डेली बेसिस पे करो, मंडे टू जितने भी आपके जो भी आपका एक टाइम जोन सेट कर लो कि आज मुझे 20 मिनट्स लिसनिंग टेक्निक, इमिटेशन टेक्निक फॉलो करनी है एंड यू हैव टू वर्क ऑन दैट. तो ऑटोमेटिकली आपकी जो लिसनिंग से बहुत फ़ायदे हैं. इट हैज़ गॉट मैनी बेनिफिट्स. सो यू फॉलो दिस इमिटेशन टेक्निक and certainly it is going to help you a lot. After that, speaking. Speaking is a way of learning, I must say. Because अगर आप सिर्फ listen करके ही रह जाओगे और आप speak नहीं करोगे, then obviously it's not good. आप listen करो और speak करो. आज आपने सीखा, suppose आज आपने listen किया था रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, ठीक है. अब चलो आपकी बारी है, चलो अपने दोस्तों को बताओ कि टुडे आज मैंने रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में स्टडी किया और मैंने उनके बारे में ये सुना, मैंने ये वर्ड सीखे. तो आप लिसन करिए और स्पीक कीजिए. लिसन, जितना लिसन उतना स्पीक एंड नेवर मिस दैट. ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ एक ही दोस्त को बताया कि आज आपने क्या किया. मे बी आप अपने बाकी लोगों को भी बता सकते हो, राइट. आप रिकॉर्ड कर सकते हो अपने जो भी आपने लिसन किया. So this is why speaking is very much important. Speaking is important. And I must say, हमारे जो माउथ के जो मसल्स हैं वो यूज टू नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग के, राइट. जैसे हम हिंदी में बहुत कॉम्फर्टेबली बोलते हैं, वी गो ऑन स्पीकिंग हिंदी और वॉट एवर आवर मदर टंग गुजराती, हम बहुत अच्छे से बोलते हैं. लेकिन जहाँ इंग्लिश बोलने की आदत है, माउथ ऑफ द मसल स्टार्ट्स पेनिंग, राइट. बिकॉज हमने इसकी हैबिट नहीं डेवलप की है. तो आपको स्पीकिंग की हैबिट डेवलप करनी है फॉर योर कंटिन्यूअस इम्प्रोवाइजेशन, राइट. जितना आप इसको कंटिन्यूअस करेंगे, यू आर गोइंग टू बी वेरी मच वेल वर्स्ड इन दिस. सो दैट इज़ वाई आई ऑलवेज फोकस कि जैसा आप लिसनिंग कर रहे हो, लिसन करके भूलना नहीं है, साथ में स्पीक करना है ऑन अ रेगुलर बेसिस. ऐसा नहीं कि आप आज मेरा हॉलीडे है, यू हैव टू पुट इट इन योर स्केड्यूल. आप उसको अपने डेली रिचुअल्स में, जैसे हम ब्रेकफास्ट करते हैं, डिनर करते हैं, लंच करते हैं, उसी तरीके से ये आपको कोर स्किल्स अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करना है. मेक अ टाइम टेबल फॉर इट. 20 मिनट्स आज मैंने स्पीकिंग की है, तो चलो आफ्टरनून हो गया, आज 20 मिनट्स में स्पीकिंग कर लेता हूँ. 20 मिनट्स मैंने लिसनिंग की है, तो 20 मिनट्स में स्पीकिंग कर लेता हूँ. सो दिस इज़ समथिंग जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है. इट्स गोइंग टू रियली हेल्प यू. आप ये करना शुरू करो, यू विल सी अ ट्रिमेंडस इम्प्रूवमेंट इन योर सेल्फ. सो जैसे जैसे ये करेंगे आपके अंदर, आप यू विल बी एबल टू कोरिलेट कि मैंने ये लिसन किया है और मैं इसको स्पीक करूँगा. सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टेल कि वोकैबुलरी, ऑब्वियसली आप जब स्पीक करते हो तो आप अपनी वोकैबुलरी पे भी ध्यान देंगे. और लर्निंग मीन्स स्पीकिंग, जैसा मैंने आपको बताया. एंड वोकैबुलरी कैन बी ओनली गुड इफ़ यू प्रैक्टिस और थिंक इन स्पीक इन इंग्लिश. आप सोचो और इंग्लिश में आप बात करेंगे. ओके, नेक्स्ट कैप्सूल इज़ राइटिंग. आपको पता है कि राइटिंग इज़ ऑल्सो वेरी गुड कैप्सूल फॉर वोकैबुलरी. अगर आप राइटिंग करते हो तो आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव होती है, और जब वोकैबुलरी इम्प्रूव होती है तो आपकी इंग्लिश के सेंटेंसेस इम्प्रूव होंगे, राइट. तो राइट करने, यू हैव टू राइट इट. जब भी आप एंग्री हो, नो नीड टू फाइट विद एनीवन, राइट व्हाई आर यू एंग्री. लिखो 5 sentences, लिखो व्हाई आई एम एंग्री. आई एम एंग्री विद माई मदर बिकॉज शी हैज़ नॉट कुक्ड माई फेवरेट फूड, राइट. Write where you are happy. Oh, I'm happy. I passed my examination with flying colors. So write it. Write when you are sad. Oh, I'm sad. I lost my mobile phone. So you have to write it there. How are you feeling? Write when you're lonely. Oh, I'm feeling quite bored. Nobody is there at my home. So you're feeling very lonely. So
you develop the practice of writing. आप जितना ज़्यादा लिखेंगे आपके लिए उतना हो जाएगा. 1 page writing is essential for you people and you have to maintain it on a daily basis. It's not like आज संडे का दिन हम लिख रहे. No, it should be 7 days because आप बहुत जल्द इम्प्रूव करना चाहते हैं तो बहुत जल्द आपको एक्सपोजर की ज़रूरत है. And it can be a 1 page writing that is enough for beginners. और 1 page तो मिनिमम और बाकी आप जितना भी लिख सकते हो, right? After that, reading is really very much important. Reading क्यों important है? Why reading is important? Because see, reading से क्या होता है ना, आप लैंग्वेज को और भी ज़्यादा डीपली एक्सप्लोर करते हो. जब आप रीडिंग करते हो तो समटाइम्स इट हैपन्स कि मैं कोई नॉवल पढ़ती हूँ या कोई स्टोरी बुक पढ़ती हूँ तो माई माइंड गोज़ देयर. वहाँ पे क्या हो रहा है? ओके, लास्ट टाइम मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था एंड दैट वाज रिलेटेड विद अ मैरिज सीन और मुझे ऐसा लगा कि मैं उस मैरिज सेरेमनी में प्रेजेंट हूँ. सो दैट इज़ रीडिंग लीड्स टू इमेजिनेशन. कभी कभी ऐसा लगता है कि आई एम ऑन दैट प्लेस, आई एम ऑब्जर्विंग एवरीथिंग, आई एम फीलिंग द पीपल देयर. सो रीडिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. रीड एनीथिंग फॉर 10 times. बिगिनर्स, अगर आप बिगिनिंग है, फर्स्ट टाइम आप मीनिंग के लिए पढ़ो और अदर टाइम 9 times फॉर प्रैक्टिस. रीड थिंग्स ऑफ योर इंटरेस्ट. जो भी आपके इंटरेस्ट का चीज़ है वो आप उसको पढ़ो एंड रीड थिंग्स रिलेटेड टू योर प्रोफेशन. आपके प्रोफेशन के अनुसार जो भी चीज़ें हैं उसको पढ़ो. रीड बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स. ऐसा नहीं है कि मैं बुक्स का ही पढ़ना, आप जो भी पढ़ो इवन इट इज़ बियॉन्ड टेक्स्ट बुक और वो आपके इंटरेस्ट का है तो आप उसको पढ़िए. इट्स रियली गोइंग टू हेल्प यू आउट. ठीक है. रीड आर्टिकल्स ऑन एनी सब्जेक्ट रेगुलरली बट इट शुड बी रेगुलर. जो भी आपका सब्जेक्ट है वो एकदम रेगुलर हो तो दैट इज़ ओके. ओके, सो इन नटसेल मैं कहना चाहती हूँ कि हमें क्या करना है, हमें अपने आप को सराउंड करना है. वी हैव टू सराउंड आवरसेल्फ विद इंग्लिश, राइट? तो आप लोग रेडी हो? आर यू गोइंग टू सराउंड? आप अपने आप को चारों तरफ इंग्लिश से घेरने वाले हो. आप करने वाले हो रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइट? You are going to do that. Now, the question comes, मैम चलो आपने तो बता दिया आप सराउंड कैसे करें. How we are going to surround it? I have one question, how to surround. तो आपको तो स्विमिंग नहीं आती, you don't know how to swim. And what is the best way to learn how to swim? The best way to learn how to swim is to first jump into the water. पानी में पहले आप जंप करो, देन ओनली यू विल बी एबल टू लर्न स्विमिंग. उसी तरह से आपको सराउंडिंग क्रिएट करनी है एंड यू विल नॉट बिलीव इंग्लिश इज़ लाइक एन ओशन. आप जब इसमें जंप करोगे, जितना आप जंप करोगे उतना आप इसके मैजिक को फील करोगे. यू विल फील द मैजिक. सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने आप को जितना इसके अंदर डालेंगे, जितना डीप जाएंगे, then you will feel the magic. You will feel very good at the end of the day. ओके, आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आस्क मैम हमारे पास एनवायरनमेंट नहीं है, लैंग्वेज के लिए एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट किया जाए. हाउ कैन वी क्रिएट एन एनवायरनमेंट एट होम ताकि हम कंफर्टेबली इंग्लिश बोल सकें. सो टुडे आई एम हियर कि आप घर पे कैसे एनवायरनमेंट क्रिएट करो, राइट? और आई एम 100% श्योर कि आप ये जितने भी मैं बता रही हूँ ये घर पे एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट किया जाए, ये बहुत सिंपल टेक्निक्स है, ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं. इफ़ यू फॉलो ऑल दिस थिंग्स इन अ वेरी सिंपल मैनर, आप अपने घर में एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं. यू कैन सराउंड योर सेल्फ विद इंग्लिश. सो फर्स्ट इज़ मोबाइल. आई थिंक वी हैव दिस हमारे हाथ में ये मोबाइल फ़ोन है ना, दिस इज़ रियली वेरी बेनिफिशियल फॉर अस, राइट? आप इन मोबाइल फ़ोन में यू यूज़ दिस मोबाइल फ़ोन n number of times and you will feel your whatever you are using. आप फेसबुक यूज़ करते हो, व्हाट्सएप यूज़ करते हो, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सर्च इंजन, अगर आप ब्लॉगिंग करते हो, whatever, everything is there. That is your mobile phone, right? तो आप अपने मोबाइल फ़ोन को प्रोडक्टिव वे में यूज़ कीजिए, right? If you use a mobile phone in a productive way, then you can see many good messages coming out in the mobile phone, right? So you are accessing बहुत सारे अच्छे messages आते हैं, that is in English. So you use it for a productive reason और language option आप English करो उसमें. So you keep your mobile phone, it has become an integral part of your life.
बट वाई डोंट वी यूज़ दिस इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. हम इसे क्यों ना अपने बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज़ करते हैं. सो सर्टेनली ये हमारे साथ बहुत ही अच्छा होने वाला है. आफ्टर दैट मैं आपको बताऊंगी दूसरा तरीका. आप मोबाइल फ़ोन ने यूज़ किया. नेक्स्ट इज़ वाई डोंट यू प्रेफर टू इंग्लिश डिक्शनरी. अगर आप इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी यूज़ करते हो देन इट इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू आउट. इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी यूज़ करने का फ़ायदा क्या है कि आप अगर इंग्लिश टू हिंदी यूज़ करते हो तो आप इंग्लिश टू हिंदी में जा रहे हो, इंग्लिश टू गुजराती में जा रहे हो, वट एवर लैंग्वेज यू प्रेफर. बट व्हेन यू आर यूजिंग इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी तो आपका पहला है कि यू गेट द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड इन इंग्लिश. आपको डेफिनेशन मिलता है किस पे, इंग्लिश में. सेकेंड, यू आर गेटिंग प्रोनाउंसिएशन. फिर आप ग्रामर भी पढ़ रहे हो बिकॉज डिक्शनरी में क्या होता है, जिस सेंटेंस से वर्ड है उसमें ग्रामर भी है और आपको बताते भी है कि वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, राइट. फिर आप स्ट्रेस भी सीखते हो और एग्जाम्पल इन सेंटेंसेस सीखते हो, राइट. तो आप इन मोबाइल फ़ोन ऑल्सो देयर आर मेनी ऑनलाइन डिक्शनरीज विच यू कैन कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, वट एवर यू कैन डाउनलोड इट एंड ऑलवेज फ्री अप योर स्पेस. आप अपने स्पेस को फ्री करो फॉर दिस गुड डिक्शनरीज. सो इन्वेस्ट इन अ वेरी गुड डिक्शनरी, राइट. सेकेंड इज यू हैव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट एट होम. आप मूवीज़ देखो, डिस्कशंस देखो. अभी बहुत सारे वेब सीरीज़ देख सकते हो, डिबेट, टॉक शोज़, एवरीथिंग. स्विच ऑन इट, स्विच करो और डू फ्रेंडशिप विद द सबटाइटल्स. आप सबटाइटल्स वाले जो ये देखते हो इट्स वेरी गुड, आपके लिए बहुत ही अच्छा है. इससे आप देख भी रहे हो एंड यू आर सीइंग द सबटाइटल्स दैट इज़ मीन इन इंग्लिश एंड इट्स रियली वेरी गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू. यू विल नॉट बिलीव कि सबटाइटल्स देखकर भी बहुत अच्छा लगता है. यू आर गेटिंग एंटरटेनमेंट, यू आर गेटिंग एंड वॉच योर फेवरेट, जो भी आपके इंटरेस्ट का है. अगर आप ज़्यादा अपने आप को डिबेट्स में इंटरेस्ट देखना चाहते हो, टॉक शोज़ देखना चाहते हो, वॉट एवर, मूवीज़ देख कर रिलैक्स होना चाहते हो, वॉट एवर, इट्स अ काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट एंड इट्स काइंड ऑफ लर्निंग टू. ये आपको एंटरटेन तो कर ही रहा है और साथ में आपकी लर्निंग भी हो रही है. So do friendship with subtitles and watch your favorite TV shows with subtitles. Next is, आपने सुना होगा लैंग्वेज लैब के बारे में. You must have heard about language lab. Now, I would suggest कि you have to design a small language lab at your home. लेकिन करें कैसे? आपके घर का एक कोना ऐसा होना चाहिए. One corner of your house you have to design as a language lab. I want this कि आप लोग ये करो. उसमें आप इंग्लिश से रिलेटेड बुक्स रखो, इंग्लिश न्यूज़पेपर जो आर्टिकल्स होते हैं वो रखो. यू रीड इट, डिवोट सम टाइम. ये मेरा इंग्लिश कॉर्नर है ऐसा वाला. सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ लैंग्वेज लैब. और उसमें डिवाइस के लिए आप क्या रखोगे? आप अपने डिवाइस के लिए आप अपना फ़ोन रख सकते हो. इफ़ यू हैव अ लैपटॉप, आप वहाँ पे लैपटॉप रख सकते हो, टैबलेट रख सकते हो. और उसमें आप उस टाइम में आप क्या करोगे, जब वहाँ पे आप बैठो अपने लैंग्वेज लैब में, तो आपने जो पढ़ा, आपने जो सुना, उसको आप रिकॉर्ड करो, ठीक है, वापस से बोलो. आप उसके बाद आप इवन यू कैन रिकॉर्ड योर वीडियो ऑल्सो. वीडियो आप उसमें आपके एवरीथिंग इज़ रिफ्लेक्टेड. आप एक्सेंट और कैसे बात कर रहे हो, आपको खुद फील होगा कि मैंने आज ये रिकॉर्डिंग की है, डे 1 में मैंने ये रिकॉर्डिंग किया. एक फ़ोल्डर बना लो, डे 2 में मैंने ये रिकॉर्डिंग किया, डे 3 में मैंने ये रिकॉर्डिंग किया, राइट. हमें किसी से कंपटीशन नहीं करनी, बट हमें अपने आप से कंपटीशन करना. वी हैव टू बी द बेस्ट वर्जन, राइट. सो आप खुद अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखो. आप किसी टॉपिक पे बोलो, चूज़ अ टॉपिक ऑफ योर ओन, जो भी आपको अच्छा लगे. डे 1 उस पर आप रिकॉर्ड करो, उसी टॉपिक पे आप डे 2 करो, डे 3 करो. सी योर कॉन्फिडेंस लेवल, सी योर एनर्जी लेवल, सी हाउ यू कैन इम्प्रूव. तो ग्रेजुअली नथिंग हैपन्स इन वन डे. और ये इन्वायरमेंट आप क्रिएट कर रहे हो ना, इट हैज़ टू बी, आपको इसको हमेशा के लिए क्रिएट करना है. यू हैव टू बी देयर विथ ऑल दिस थिंग्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा आपके लिए. नेक्स्ट इज यू हैव टू सब्सक्राइब टू अ न्यू मैगजीन और यू कैन से अ न्यूज़पेपर इन इंग्लिश. इवन यू डोंट आप न्यूज़पेपर नहीं मंगाते हो, बट यू कैन हैव ऑनलाइन न्यूज़पेपर एंड ओवर देयर यू कैन रीड. you develop the habit of reading. It is very much important. न्यूज़पेपर पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं कि you improve your vocabulary. आप अच्छे impressive essays और articles वहाँ पढ़िए, आपकी जनरल नॉलेज improve होने वाली है.
आपकी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होने वाली है. यू कैन ऑल्सो इन्हांस योर राइटिंग स्किल्स. आप अपने राइटिंग स्किल्स को भी इन्हांस कर सकते हो, बिकॉज कई दफ़ा ऐसा होता है कि यू हैव टू वर्क ऑन योर राइटिंग स्किल्स. तो आप अपने राइटिंग स्किल्स पे कैसे वर्क करेंगे? तो राइटिंग स्किल्स पे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो वी आर गोइंग टू रिलेट दिस विथ आवर डे टू डे लाइफ, राइट? तो आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होगी, प्लस योर कॉन्फिडेंस लेवल विल इम्प्रूव. तो देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स जहाँ पे आपको एकदम ट्रिमेंडस आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होने वाली है, राइट? तो न्यूज़पेपर दैट हैज़ टू बी अ पार्सल ऑफ योर लाइफ. आपके लाइफ का पार्ट एंड पार्सल होना चाहिए. सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. अगर आप ये करेंगे दैन इट्स गोइंग टू हेल्प यू आउट. ओके. और हाँ, चूज़ योर आर्टिकल. न्यूज़पेपर में बहुत सारे सेक्शंस है. पॉलिटिकल न्यूज़ है, इंटरनेशनल न्यूज़ है, बिजनेस न्यूज़ है, बॉलीवुड न्यूज़ है, रीजनल न्यूज़ है, स्पोर्ट्स न्यूज़ है, हॉरोस्कोप है, एस्ट्रोलॉजी है, वॉटएवर. ब्यूटी से रिलेटेड कुछ आ रहा है, कुकिंग से रिलेटेड आ रहा है, कोई भी एक आर्टिकल लो आपके पसंद का. इट शुड बी ऑफ योर इंटरेस्ट. चूज़ योर फेवरेट आर्टिकल. रीड द आर्टिकल अलाउड. जैसे मैंने बोला रीडिंग इंपॉर्टेंट है, तो घर में आप रीड करो एकदम अलाउड. रीड द आर्टिकल अलाउड. आइडेंटिफाई न्यू वोकैबुलरी एज यू गो, राइट? सो एज आई टोल्ड कि वोकैबुलरी लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं, तो आप अपनी वोकैबुलरी को आप आइडेंटिफाई करो. कीप अ वोकैबुलरी नोटबुक. कम ऑन, इट्स इम्पॉर्टेंट. आपने लैंग्वेज लैब डिज़ाइन किया है, वहाँ पे आप एक वोकैबुलरी नोटबुक रखिए एंड यूज़ द वर्ड इन अ कॉन्टेक्स्ट. एक वर्ड सीखा और उसको कॉन्टेक्स्ट में आपको लगाना है, किस संदर्भ में आप उसको लगा रहे हैं. यूज़ द वर्ड इन योर डेली कॉन्वर्सेशन. और आप अपने उस वर्ड को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, इन योर डे टू डे लाइफ, इन योर डेली कॉन्वर्सेशन, आप उसको यूज़ कीजिए एंड प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन. और जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, आपका उस वर्ड के ऊपर, उस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर कमांड उतनी बार होगा. नेक्स्ट इज, घर पे इन्वायरमेंट बनाना है तो आपको एक दोस्त भी चाहिए. फाइंड अ फ्रेंड. ठीक है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ यू हैव अ फ्रेंड तो बहुत ही अच्छा है, उसको घर पे आप बुलाओ. यू कैन टॉक विद दैट फ्रेंड इन इंग्लिश. प्रैक्टिस सेशन करो, टॉकिंग एंड टॉकिंग. डेवलप द हैबिट ऑफ टॉकिंग, थिंकिंग इन इंग्लिश एंड यू विल बी फ्लुएंट. इन्वायरमेंट एट होम. इवन इफ़ यू डोंट वांट टू कॉल हिम, आप फ़ोन पे कर लो उनसे बात. आप एक जूम मीटिंग कर सकते हो, गूगल मीट कर सकते हो. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एट दिस टाइम बिकॉज यू नीड अ पार्टनर टू प्रैक्टिस. यू नीड समवन जो आपसे बात करे इंग्लिश में, राइट? सो फाइंड अ फ्रेंड ऑफ योर, फाइंड अ फ्रेंड whose interest is like you. वो जो आपकी तरह सोचता है, वो भी उसको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, राइट? तो you find a friend, so that is very much important. राइट इन इंग्लिश. आई टोल्ड यू कि आप अपने घर का एक ऐसा कोना सिलेक्ट करो जहाँ पे बहुत शांति हो, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट हो और आप आसानी से उस पर लिखो. सेलेक्ट योर फेवरेट टॉपिक. आप अपना कोई भी एक फेवरेट टॉपिक सेलेक्ट करो और उसके ऊपर आप लिखो. एक राइट टाइम सेलेक्ट करो. कभी कभी ऐसा होता है कि हम दिन भर थक कर आते हैं, तो कम ऑन, दैट इज़ ओके. आप शांति से बैठ जाओ एंड यू राइट ऑन दैट टॉपिक. सो दैट इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू. आपके लिए बहुत ही अच्छा हो. राइटिंग इज़ गोइंग टू मेक यू परफेक्ट. राइटिंग से ड्राफ्टिंग अच्छी होती है, राइट? क्योंकि एक दिन से लिखने से कुछ नहीं होगा. इट्स नॉट अ वन डे, इट्स अ कंटिन्यूअस. आज आपने एक पैराग्राफ लिखा, कल आप 2 पैराग्राफ लिखोगे. कम ऑन, इट मे हैपन कि आप एक बुक भी लिख डालो. सो राइटिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. प्रोफिशेंसी इसमें आएगी जितना आप लिखोगे, बिकॉज अभी एवरीथिंग इज़ डॉक्यूमेंटेड. हम काम बहुत सारा करते हैं, बट समटाइम्स इट हैपन्स कि हमसे पूछा जाता है कि आपने काम क्या किया. सो यू हैव टू राइट अ रिपोर्ट, यू हैव टू राइट एन ईमेल, राइट? सो दैट्स वाई राइटिंग इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आप जितना लिखेंगे, आपकी प्रोफिशेंसी, आपकी एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है. सो राइटिंग इज़ रियली अ वेरी गुड एक्सरसाइज. एंड राइटिंग शुड बी रिपीटेटिव. जैसा है, राइट फ्रॉम योर हार्ट. दिल से लिखने की ज़रूरत है. ऐसा नो नीड टू कॉपी फ्रॉम समवेयर. वॉट एवर यू आर राइटिंग, दैट शुड कम स्ट्रेट फ्रॉम योर हार्ट. वो आपके एकदम माइंड से निकलना चाहिए, हाथ से निकलना चाहिए, राइट? यस, ओके. नाउ अब मैं आपको बताऊंगी सॉन्ग्स.
सॉन्ग्स जो सुनना है ना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज सॉन्ग से क्या होता है ना, आपकी जो वोकेबुलरी है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस होती है, आपकी प्रोनाउंसिएशन इन्हांस होती है, आप ये देखते हो कि छोटे छोटे सेंटेंस कैसे जुड़ रहे हैं. सो यू आर सीइंग सो मेनी थिंग्स. सो सॉन्ग्स का बहुत बेनिफिट है, आपकी वोकेबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी, और हमारे दिमाग को तो सूद करता है. इट हैज़ अ सूदिंग इफेक्ट, माइंड को बहुत सूद करता है, और ये आपको लैंग्वेज लर्निंग में बहुत हेल्प करता है. सो आई वुड प्रेफर, एज वी आर फोकसिंग ऑन द टॉपिक इंग्लिश, तो यू हैव टू लिसन टू इंग्लिश सॉन्ग्स. जो भी आपका फेवरेट इंग्लिश सॉन्ग्स है, आप उसको सुनो एंड देन यू प्ले दैट. तो आप देखो बेनिफिट कितने हैं, आप इंजॉय भी कर रहे हो और आप साथ में लर्न भी कर रहे हो. सो इट हैज़ गॉट बोथ द बेनिफिट्स, यू आर इंजॉइंग एंड एट द सेम टाइम यू आर लर्निंग. ओके, तो राइट नाउ व्हाट आई एम प्लानिंग, मैं अब अभी एक एक्टिविटी करती हूँ, और एक्टिविटी में क्या करना है ना, मैं आपको एक गाना सुनाऊंगी. इट्स एन इंग्लिश सॉन्ग. ओके, टाइटैनिक फिल्म का है ये गाना, और मैं आपके सामने ये गाना प्रेजेंट कर रही हूँ. राइट, आपने स्क्रीन पे इतने सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, आप देखो, और मैं जब गाना गाऊंगी, व्हेन आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, तो जो जो वर्ड्स आएंगे आप उनका इस एक्टिविटी के थ्रू प्रोनाउंसिएशन सीखोगे. ओके, सो फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द सॉन्ग. मैंने जो गाना गाया उस गाने में से आपको वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. मैं आपके सामने एक गाना गा रही हूँ, और ये जो स्क्रीन पे वर्ड्स लिखे हैं आपको मेरे गाने में से आइडेंटिफाई करना है. मैडम ने ये वर्ड यूज़ किया, जैसे मैम ने फियर यूज़ किया, क्या मैम ने नाइट यूज़ किया, ओके, ड्रीम यूज़ किया, सी यूज़ किया, फील यूज़ किया. ये सारे वर्ड्स मैं जो भी गाना गा रही हूँ वो उस गाने में आपको ये सारे वर्ड्स आएंगे. ठीक है, और गाना सुनने से इस एक्टिविटी का आउटकम क्या है कि आपको मैं सिखा रही हूँ कि सिर्फ गाना सुनना नहीं है, यू हैव टू ऑल्सो सिंग एंड यू आर गोइंग टू लर्न द वर्ड्स फ्रॉम इट, एंड इट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग यू टू सूद योर माइंड. सो लेट अस बिगिन. आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर यू पीपल. Every night in my dreams I see you, I feel you, that is how I know you. Go on. Far across the distance and spaces between us, you have come to show me. Go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more, you open the door. You are here in my heart, and my heart will go on and on. Love can touch us one time and last for a lifetime. In my life will always go on. Love was when I loved you one true time. I hold you. In my life will always go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more, you open the door. You are here in my heart, and my heart will go on and on. You are here, there's nothing I fear. You are safe in my heart, and my heart will go on and on. We'll stay forever this way.
You are safe in my heart and my heart will go on and on. ओके, सो मैंने एक गाना गाया अभी एंड आई एम 100% श्योर कि ये जो स्क्रीन पे जितने भी वोकैबुलरी लिखे हैं आपने इनको ज़रूर आइडेंटिफाई किया होगा, राइट? हमने इस सॉन्ग से बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन, बहुत सारे वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन सीखे. हमने सीखा हम फियर कैसे बोलते हैं, हमने नाइट कैसे बोलना है, ड्रीम, सी, फील, स्टे, हाउ, फार, अक्रॉस, डिस्टेंस, forever, spaces, between, show, wherever, safe, believe, heart, door, touch. We all learned all this vocabulary. Don't you think? ये क्या एक amazing exercise नहीं है? We are learning. हम सीख भी रहे हैं and we are enjoying. तो आप ऐसे sentences भी सीख सकते हो. So this is very, आपके घर में environment create हो रहा है. When you are playing an English song, आप अपना काम भी कर रहे हो और आप साथ में प्रोनाउंसिएशन भी सीख रहे हो. इवन वन वर्ड इंटर्स इन योर ईयर एंड इट हेल्प यू टू इम्प्रोवाइज, देन व्हाट्स रॉन्ग? आप कर सकते हो, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट एन एनवायरनमेंट एट होम बाय लिसनिंग टू सॉन्ग्स. सॉन्ग्स को सुनकर आप बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो. सो देखो, ये उस गाने के मैंने सारे लिरिक्स लिखे हैं यहाँ पे फॉर यू पीपल. आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आपका जो भी पसंद का कोई भी गाना हो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट? सो इट इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू आउट. ओके, सो यू कैन टेक दिस, जैसे मैंने बोला, लव कैन टच अस वन टाइम एंड लास्ट फॉर अ लाइफ टाइम एंड नेवर लेट गो टिल वी आर गॉन, राइट? सो दिस इज इंग्लिश. ये सारे इंग्लिश में. इट्स वेरी वंडरफुल सॉन्ग. इट सूट्स माई माइंड. सो आई लर्न दिस सॉन्ग बाय लिसनिंग. सो इट्स नॉट अ बिग डील. वी कैन लर्न इट. आपका जो भी फेवरेट सॉन्ग हो, आई नेवर हेजिटेट, राइट? ओके, अब आपने ये सब किया. सो अब आपको क्या करना है? सेंटेंसेस बनाना है. यू हैव टू फ्रेम. इट्स नॉट लाइक मैं बोल नहीं पाता, मेरे से नहीं हो पाए. कम ऑन, रिमूव दिस ऑल, टेक दिस ऑल असाइड. हो पाता है. देयर इज नथिंग फॉर इम्पॉसिबल. इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल. छोटे छोटे सेंटेंसेस अगर आप बनाना शुरू करोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल, मेरी मम्मा, माई मदर इज़ 45 years old. My mother is very happy. My sister studies in a university. I have 2 brothers. There's traffic on the road. Why are you late? English lesson is very easy. So you frame simple sentences. आपके लेवल का, whatever you feel, आप उस लेवल का आप सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हो. देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट. आप बहुत अच्छा कर सकते हो. द ओनली थिंग इज़ दैट यू हैव टू ट्राई. आप जितना ट्राई करोगे, आपकी लेवल ऑफ इंग्लिश, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड स्काई इज़ द लेवल. आप बहुत ज़्यादा प्रोफिशेंट हो सकते हो, राइट? सो आई होप यू पीपल विल फॉलो दिस. ओके, आई विल सी कि देखो, मिस्टेक्स आर द बेस्ट टीचर. आई नो दैट आप बिगनिंग में सेंटेंसेस फ्रेम करोगे, गलतियाँ होंगी, बट कम ऑन, मिस्टेक्स आर द बेस्ट टीचर. यू हैव टू, वी नीड, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए एक मोटिवेशन होना चाहिए. यू थिंक ना, आप क्यों सीखना चाहते हो, पैशन होना चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए और डिटर्मिनेशन होनी चाहिए. यू शुड बी डिटरमाइंड कि नहीं, इस मंथ के अंत तक तो मुझे इतना कुछ करना ही है, अपने लेवल में इतना सुधार लाना ही है. कॉन्फिडेंस, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट? एंड आप देख सकते हो ये ज़रूरी है आपके लिए. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू. सो डोंट यू थिंक जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या हम उन सारी चीज़ों को करने के लिए वी आर नॉट गोइंग टू फोकस ऑन दैट? आर वी गोइंग टू फोकस? येस, वी आर गोइंग टू फोकस. और हमें फोकस करना है अपने स्पीड इम्प्रूवमेंट के लिए, अपने करियर के लिए, राइट? सो वी हैव टू डू दैट. ओके, नेक्स्ट इज, आई वुड से यू, जैसे आपने एवरीडे इंग्लिश पढ़ा, और एवरीडे इंग्लिश में हमने क्या पढ़ा? टेंसेस के बारे में पढ़ा. तो टू बी वेरी ऑनेस्ट कि कोई भी एक्शंस जो होते हैं टेंसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप टेंस का एकदम आप इसको प्रैक्टिस करो. वॉट एवर हैज़ बिन, जो भी आप टेंस के आपने नोट्स बनाए हैं अभी तक, उसको आप प्रैक्टिस करो. बिकॉज टेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल. बिकॉज हम जब बात करते हैं, किसके बारे में बात करेंगे? इधर वी विल टॉक अबाउट द प्रेजेंट, जो समय अभी है उसके बारे में बात करेंगे, पास्ट के बारे में बात करेंगे, फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, राइट?
सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में ही बात करने वाले हैं, राइट? तो क्यों ना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करनी है. और ये किससे रिलेटेड? ये टेंसेस से रिलेटेड है. तो आपको टेंसेस की बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए. आप इसको प्रैक्टिस करो, आप इसके एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करो. सो इट इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू, राइट? अभी मैं आपके सामने एक एक्टिविटी कर रही हूँ. ये टेंस से रिलेटेड एक्टिविटी है. आपको क्या इमेजिन करना है? चलो अभी हम देखते हैं. बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है कि आपको इमेजिन करना है कि आप एक बैंक में हो, राइट? इमेजिन यू आर इन अ बैंक एंड थिंक व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू. चलो 1 मिनट का टाइम है. आप बैंक में हो, ये बैंक का है. आप एक बैंक में हो और बैंक में क्या हो रहा है? आप वहाँ पे खड़े हो बैंक में, आप बैंक के अंदर हो, यू आर स्टैंडिंग इन अ बैंक और आपको बताना है कि बैंक में क्या हो रहा है. आपको ये पूरा जो सेंटेंसेस फॉर्म करना है, बिकॉज क्या हो रहा है प्रेजेंट टाइम्स और एक्शन कंटिन्यूअस है, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि हम कौन सा टेंस यूज़ करने वाले हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. तो आप बता सकते हो कि बैंक में क्या हो रहा है. आप अपने आप को इमेजिन करो, आपने अपने आप को बैंक के अंदर ले जाओ. इमेजिन यू आर इन अ बैंक एंड एक्सप्लेन व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू. कम ऑन, आप लिख भी सकते हो. यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स. जो भी जो भी आपको दिमाग में आ रहा है, एक बैंक में क्या हो सकता है, व्हाट कैन हैपन इन अ बैंक. ठीक है, जस्ट टेक योर माइंड. आप रिलैक्स होकर आप सोचो कि बैंक में क्या हो रहा है. ओके, चलो आई होप आपने सोच ही लिया होगा, राइट? और आपने कुछ एग्जाम्पल्स भी रेडी किए होंगे. यू मस्ट हैव प्रिपेयर्ड सम एग्जाम्पल्स, राइट? तो चलो मैंने भी कुछ सेंटेंसेस आपके लिए बनाए हैं. तो आप देखो बैंक में क्या हो सकता है. ओह, राइट नाउ आई एम इन अ बैंक. मैं एक बैंक में हूँ. पीपल आर स्टैंडिंग इन अ क्यू. लोग लाइन में खड़े हैं. द कैशियर इज कलेक्टिंग कैश. कैशियर जो है कैश कलेक्ट कर रहा है. सम पीपल आर डिपॉजिटिंग मनी. कुछ लोग मनी डिपॉजिट कर रहे हैं. सम पीपल आर विड्रॉइंग मनी. कुछ लोग पैसे निकाल रहे हैं. सम पीपल आर फिलिंग द फॉर्म. कुछ लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं. आई होप बैंक में ये सब होता है, राइट? तो मैंने क्या किया, आप लोग को भी ऐसे ही करना है, राइट? आपने देखा कि बैंक में क्या क्या एक्शंस है और आपने लिख डाला उनको, राइट? कि बैंक में ये सब चीज़ें हो रही हैं. ओके, देयर आर ऑल्सो फ्यू पीपल हु आर अप्लाइंग फॉर लोन. सम पीपल आर राइटिंग चेक. कुछ लोग तो चेक लिख रहे हैं, चेक पे लिख रहे हैं, और कुछ लोग लोन्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं. सम पीपल आर अप्लाइंग फॉर क्रेडिट कार्ड. कुछ लोग तो क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं. सम पीपल आर डिस्कसिंग देयर इश्यूज विद द कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव. बैंक में एक CCE दैट इज कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव होते हैं. तो कुछ लोग तो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से भी डिस्कस कर रहे हैं. द सिक्योरिटी गार्ड इज स्टैंडिंग एट द मेन डोर. ही इज कीपिंग आई ऑन एवरीवन. सिक्योरिटी गार्ड कहाँ पे खड़ा है? मेन डोर पे, और वो सब पे आंखें नज़र रखे हुए है. सो व्हाट इज दिस? दिस इज सीन एट अ बैंक. तो आप अपने आप को कहीं भी ले जा सकते हो. यू कैन टेक योर सेल्फ इन अ रेलवे स्टेशन, राइट? आप अपने आप को रेलवे स्टेशन पे ले जाओ और आप देखो वहाँ पे क्या हो रहा है. यू कैन टेक योर सेल्फ टू अ जू. जू में क्या हो रहा है? ओह, आई कैन सी द पिकॉक. द पिकॉक इज डांसिंग. सी द लायन इज रोरिंग. ओह माई गॉड, द रैबिट इज रनिंग. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग. सो यू कैन ऑल्सो फ्रेम सेंटेंसेस. आप इस तरीके से सेंटेंसेस फ्रेम करो. अपने आप को एक सिचुएशन दो एंड यू कैन फ्रेम सेंटेंसेस. तो इस तरीके से अगर हम ये फॉलो करते हैं देन इट इज़ रियली गोइंग टू बी वेरी मच हेल्पफुल. ओके, तो मैंने देखो आप लोगों के लिए, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो. यहाँ पे मैंने सेम सेंटेंसेस लेके और मैंने जो ING वाले वर्ड्स हैं मैंने उनको अंडरलाइन कर दिया है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, राइट? कि आप आइडेंटिफाई करो कि हमने एक्शंस कौन कौन से देखे. स्टैंडिंग, डिपॉजिटिंग, कलेक्टिंग, विड्रॉइंग, फिलिंग, राइटिंग, अप्लाइंग, राइट? कीपिंग, डिस्कसिंग, स्टैंडिंग, ये सारे ये सीन एट अ बैंक. और आप कुछ भी टॉपिक देख सकते हो. जब आप ये एक्सरसाइज करो तो सीन एट अ रेलवे स्टेशन, सीन एट अ स्कूल, सीन एट अ जू, वट एवर कम्स टू योर माइंड. और आप भी ऐसे सेंटेंसेस फ्रेम करो. बहुत सारे सेंटेंस आएंगे. ओके, तो मैं आपको ये इन सारे टिप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो आपका हेजिटेशन तो बहुत ही रिमूव होगा. इट्स गोइंग टू रिमूव योर हेजिटेशन. और हम में से किसी को भी कोई हेजिटेशन नहीं रखनी चाहिए, राइट? हेजिटेशन जितना कम हो हमारे लिए उतना अच्छा है.
और आपको अपने अनकंफर्टेबल बॉन्ड जो आप लोगों ने अगर आपके अंदर है तो उसको ब्रेक करो. कम ऑन, ब्रिंग योर सेल्फ इन अ कंफर्टेबल जोन. आपको एक कंफर्टेबल जोन में लाना है और अपना एक लर्नर टॉकिंग टाइम LTT ये डिसाइड करना है. सो इट्स रियली गोइंग टू हेल्प यू. आपको बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप ये करते हैं. ओके, नाउ मैं आपको बताने वाली हूँ रूट एलिमेंट्स. ठीक है, दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे बहुत ध्यान से सुने. मैं क्या बताने वाली हूँ. रूट एलिमेंट्स. सी, इफ़ आई टॉक अबाउट द नंबर्स 1 to 9, राइट, 0 to 9 नंबर्स हैं, ये बेस हैं, दे आर द रूट्स. और इन 0 to 9 को लेकर कितने सारे नंबर्स हैं, दे आर द बेस. 0 to 9 क्या है, बेस है. और उनके बेसिस पे कितने सारे नंबर्स हैं, देयर सो मेनी नंबर्स. सिमिलरली A to Z ये क्या है, अल्फ़ाबेट्स हैं, राइट. और A to Z अल्फ़ाबेट्स हैं और इनके बेसिस पे कितने सारे वर्ड्स हैं, हर दिन नए नए वर्ड्स आते हैं, राइट. सिमिलरली म्यूज़िक में भी कितने नोट्स हैं, 7 म्यूज़िकल नोट, सारे गामा पधा नी सा, राइट. और उन्हीं बेसिस को लेके जितने म्यूज़िकल कॉम्पोजिशंस आते हैं, राइट, इनको क्या कहते हैं, रूट एलिमेंट्स. दे आर नोन एज रूट एलिमेंट्स. बेसिक्स, ये बेसिक्स हैं किसी भी चीज़ के. 0 to 9 नंबर्स के बेसिक्स हैं, राइट. A to Z ये वर्ड्स के, न्यूमरस मिलियंस ऑफ वर्ड्स के ये बेसिस हैं. और ये जो 7 सुर हैं ये कितने अच्छे अच्छे सॉन्ग्स के बेसिस हैं. आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज के भी कुछ बेसिस है, राइट. अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ रूट एलिमेंट्स को जाने तो हम सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं. लुक, आगे के स्लाइड्स में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि हम थॉट्स, राइट, कोई भी इमेज, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आता है तो उसके बारे में हम 20 तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं. वॉट एवर ऑब्जेक्ट कम्स टू आवर माइंड वी कैन फ्रेम सेंटेंसेस इन 20 वेज. कोई भी थॉट आपके माइंड में आए, कोई भी थॉट, कोई भी वर्ड आपके माइंड में आ रहा है, आप उसके ऊपर 20 तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं. यस, इट इज़ पॉसिबल. और आप बहुत ही इंजॉय करने वाले हो आगे के स्लाइड्स में, बिकॉज देयर विल बी लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़ टू. तो 20 तरीके से कोई भी एक थॉट माइंड में आ रहा है और आप उससे 20 तरीके के सेंटेंसेस बना रहे हो. डोंट यू थिंक इट्स अमेजिंग. कोई भी एक थॉट, मैं पेन के ऊपर 20 तरीके से सेंटेंसेस बना सकती हूँ, मैं मोबाइल फ़ोन के ऊपर 20 तरीके से सेंटेंसेस बना रही हूँ, राइट. तो आप किसी के ऊपर भी, कोई भी टॉपिक के ऊपर आप बोलो, आप 20 तरीके से, इन 20 वेज यू कैन फ्रेम सेंटेंसेस, राइट. तो लेट्स सी कैसे ये होता है, हम इसे देखेंगे. ओके, बिफोर दैट मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि ये जो मेथड मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ, ये मेथड आपके माइंड को ट्रेन करेगा कि आप इंग्लिश में कैसे थिंक कर सकते हैं. बिकॉज ये जो मैं 20 तरीके से सेंटेंसेस बोल रही हूँ, ये 20 थॉट्स हैं आपके माइंड के लिए, जिसके बेसिस पे आप सेंटेंसेस बनाएंगे, राइट. और राइटिंग आप करेंगे एक यूनिक वे में, इन अ वेरी इनहेबिटेबल हैबिट, राइट. बिकॉज राइटिंग के बारे में कहा गया है, मैं सबसे पहले शुरू करूँगी कि स्मॉल माइंड्स डिस्कस पीपल, एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट्स, ग्रेट माइंड डिस्कस आइडियाज़, राइट. तो मैंने आज आपके लोगों के सामने आइडियाज़ शेयर किए हैं एंड यू विल ऑल्सो बी शेयरिंग योर आइडियाज़ हेयर, राइट. सो अब मैं आपको एक यूनिक वे बता रही हूँ जिसके थ्रू आप 20 थॉट्स ला सकते हैं किसी के टॉपिक के ऊपर, राइट. तो थॉट्स क्या है, ये 20 थॉट्स, ये रूट सेंटेंसेस है जिसके बेसिस पे आप सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट थॉट है, और ये आपको बताएगा इंग्लिश आप रियल लाइफ सिचुएशंस में कैसे बोल सकते हैं, राइट. तो फर्स्ट जो अपना थॉट है ना, वो क्वालिटी है. कोई भी अगर चीज़ आती है आपके सामने तो हम उसके क्वालिटी के ऊपर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं. वी कैन रिफ्लेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट. तो मैंने चाय है, चलो चाय एक थीम लिया है मैंने, आई हैव टेकन टी एज अ थीम. और फिर अगर चाय की क्वालिटी के बारे में बात करें तो मैं क्या बोल सकती हूँ, चाय अच्छी है, टी इज़ गुड, टी इज़ नॉट गुड, इज़ टी गुड, राइट.
तो ये क्या है, हम किसी भी चीज़ के बारे में क्वालिटी के ऊपर बात कर सकते हैं। कोई भी थॉट, आपको कोई भी टॉपिक मिले, आप उसके ऊपर क्वालिटी के ऊपर आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो और क्वालिटी के ऊपर आप सेंटेंसेस बना सकते हो। ठीक है, तो अभी हमने थॉट नंबर 1 सीखा। अब देखो थॉट नंबर 2 है क्या, हैबिट। हैबिट मतलब आपकी आदत। जैसे मदर मेक्स टी, इसका मतलब माँ चाय बनाती हैं, राइट। मदर डजंट मेक टी, डज मदर मेक टी, क्या माँ चाय बनाती है, राइट। तो हमने फर्स्ट क्या सीखा, क्वालिटी, और सेकंड क्या सीखा, हैबिट, राइट। तो अब हैबिट से हैबिट से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो फर्स्ट थॉट हुआ क्वालिटी, सेकंड थॉट हुआ आपका हैबिट। थर्ड इज पास्ट। कोई भी अगर आपके पास थॉट आता है तो आप उसको पास्ट से भी रिलेट कर सकते हो, राइट। मदर मेड टी, माँ ने चाय बनाई थी, पास्ट है ना, माँ ने चाय बनाई थी, राइट। मदर डिडंट मेक टी, माँ ने चाय नहीं बनाई थी। डिड मदर मेक टी, माँ ने चाय बनाई थी, ऐसे। तो आप उसको पास्ट में ले जा सकते हो, राइट। उसके बाद हम फ्यूचर, माँ चाय बनाएगी, मदर विल मेक टी, मदर विल नॉट मेक टी, माँ चाय नहीं बनाएगी। विल मदर मेक टी, क्या माँ चाय बनाएगी, राइट। उसके बाद टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूटी, यानी हो सकता है आपके पास वो जो थॉट आया वो क्या कंटिन्यूअस है, माँ चाय बना रही है, मदर इज मेकिंग टी, माँ चाय नहीं बना रही है, मदर इज नॉट मेकिंग टी, क्या माँ चाय बना रही है, इज मदर मेकिंग टी, राइट। तो हमने 5 तरीके से देखा, 5 थॉट्स हमारे दिमाग में आए और उसके ऊपर आप सेंटेंसेस बना सकते हो। अब ये क्या 5 थॉट्स आए, क्वालिटी आया, हैबिट आया, पास्ट आया, फ्यूचर आया और कंटिन्यूटी आया। और इन दिस वे आपने 5 सेंटेंसेस, 5 थॉट्स आए और 5 सेंटेंसेस आपने बना सकते हो। ठीक है, तो चलो मैंने आपको थीम दिया पिज्ज़ा। कम ऑन फास्ट, क्या आप पिज्ज़ा के ऊपर, थीम क्या है, पिज्ज़ा, राइट। तो क्या आप पिज्ज़ा के ऊपर on the basis of quality, on the basis of habit, on the basis of past, on the basis of future and on the basis of continuity, क्या आप 5 सेंटेंसेस बना सकते हो? ये 5 थॉट्स हैं, ये 5 रूट्स हैं, राइट। रूट क्या है, क्वालिटी वाली, पिज़्ज़ा आपका रूट है, पिज़्ज़ा आपका थीम है और उसका आपका रूट क्या है, क्वालिटी, हैबिट, पास्ट, फ्यूचर, कोई भी सेंटेंसेस, लेकिन सेंटेंस क्या है, आपका थीम क्या है, पिज़्ज़ा। चलो स्टार्ट, आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स टाइम, कम ऑन। अगर आप बना सकते हो तो आप लिखो अपने कमेंट बॉक्स में, कम ऑन, आप कर सकते हो, मुझे पता है, यू कैन डू इट, कम ऑन, स्टार्ट राइटिंग। यस यस, आई होप आप सभी ने लिखा होगा, यू मस्ट हैव रिटन, ओके। तो आप देख सकते हो कि क्वालिटी जो होती है दैट इज, अब लेट्स सी, मैंने एग्जांपल्स आप लोगों के लिए रेडी रखे हैं, यू कैन ऑल्सो फ्रेम लाइक दिस। अगर आपने नहीं बनाया है, नो प्रॉब्लम, कोई चिंता करने की बात नहीं है, यू कैन फ्रेम इट लेटर, राइट। लेकिन हाँ, ये 5 कीवर्ड्स आप याद रखना, क्वालिटी, हैबिट, पास्ट, फ्यूचर एंड कंटिन्यूटी। चलो लेट्स सी क्या सेंटेंसेस बने हैं। ओ पिज्ज़ा, पिज़्ज़ा इज़ अ टेस्टी फूड, पिज़्ज़ा तो बहुत टेस्टी फूड है। माई मदर मेक्स पिज़्ज़ा, मेरी माँ पिज़्ज़ा बनाती हैं। शी मेड इट लास्ट मंथ, उन्होंने लास्ट मंथ बनाया था, ये पास्ट हुआ ना। शी विल मेक पिज़्ज़ा ऑन दिस दिवाली, वो इस दिवाली पिज़्ज़ा बनाएंगी। कंटिन्यूटी, माई मदर इज मेकिंग पिज़्ज़ा। है ना सिंपल, है ना आसान। 5 थॉट्स आए और हमने 5 सेंटेंसेस बना दिया किसी भी टॉपिक के ऊपर, और ये रूट है, आप इनसे हजारों सेंटेंसेस बना सकते हो। मैंने बोला पिज़्ज़ा इज टेस्टी फूड, आप बोल सकते हो पिज़्ज़ा इज डिलिशियस, ठीक है। माई मदर मेक्स पिज़्ज़ा, आप बोलो माई मदर मेक्स पिज़्ज़ा इन डिफरेंट स्टाइल्स, इन डिफरेंट शेड, शी मेड इट लास्ट मंथ, राइट। सो इन दिस वे यू हैव टू, आप अपनी क्रिएटिविटी को जगाइए और इन 5 थॉट्स से यू कैन मेक मैनी मैनी सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये तो पहले 5 थे, अब नेक्स्ट 5 चलते हैं। ये देखो, टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन इसका मतलब क्या हुआ है, एक्शन जो है वो पूरा हो गया है। मदर हैज मेड टी, माँ ने चाय बना ली है। मदर हैज मेड टी, मदर हैजंट मेड टी, हैज मदर मेड टी, क्या माँ ने चाय बनाई है। तो पहला थॉट क्या हुआ, कॉम्पिटिशन। तो क्या वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है,
दूसरे थॉट के ऊपर आते हैं। पहला आई होप क्लियर है, टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटिशन, यानी क्या ये एक्शन, क्या ये जो थॉट जो आपके दिमाग में आए वो क्या कंप्लीट हो चुका है। सो टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटिशन। दूसरा, टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूटी विद टाइम, क्या ये एक्शन जो आपके मन में थॉट आया है उससे रिलेटेड जो आप सेंटेंस बना रहे हो, क्या वो सुबह से कनेक्टेड है, सुबह से हो रहा है ये, या अभी चालू है। फॉर एग्जाम्पल, मदर हैज़ बिन मेकिंग टी सिंस मॉर्निंग, माँ सुबह से चाय बना रही है। मदर हैज़ बीन नॉट बीन मेकिंग टी सिंस मॉर्निंग, माँ सुबह से चाय नहीं बना रही है। हैज़ मदर बीन मेकिंग टी सिंस मॉर्निंग, क्या माँ सुबह से चाय बना रही है, राइट। तो ये क्या है, टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूटी विद टाइम, यानी कोई भी एक्शन चालू हुआ और अभी भी वो कंटिन्यू है, ठीक है। तो इस तरीके से, तो पहला हमने क्या किया, टॉकिंग अबाउट कंप्लीटेशन, और फिर हमने बात की टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूटी विद टाइम। फिर हम बात करेंगे टॉकिंग अबाउट हाइपोथेटिकल सिचुएशन। नाउ व्हाट इज हाइपोथेटिकल सिचुएशन? अब हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्या, आपको इमेजिन करना है। आप कभी कभी ऐसा होता है ना, ओह इफ मदर मेक्स टी आई विल हैव इट, अगर माँ चाय बनाएगी तो मैं पीऊँगा। तो दिस इज हाइपोथेटिकल, आप इमेजिन कर रहे हो, राइट। हम अपने लाइफ में बहुत सारी ओ ऐसा होता तो मैं ऐसा करूँगा, वो वाला। तो ये वो वाला सेंटेंसेस है, इफ मदर मेक्स टी आई विल हैव इट, ओके। तो ये, उसके बाद टॉकिंग अबाउट असर्शन, असर्ट, मदर डज मेक टी, मदर डज, माँ चाय अवश्य बनाएगी, वे मैं श्योर, आप असर्ट कर रहे हो कि माँ तो चाय बनाएगी, सो माँ अवश्य चाय बनाएगी, ओके। टॉकिंग अबाउट पोजेशन, पोजेशन मतलब आपको पता है, अगर कोई चीज़ आपके पास है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पोजेशन। तो क्या बोल सकते हैं, माँ के पास चाय है, मदर हैज़ टी। माँ के पास चाय नहीं है, मदर डजंट हैव टी। क्या माँ के पास चाय है, डज मदर हैव टी। तो हमने पोजीशन की बात की। तो वापस से हम रिवाइज करेंगे फॉर यू पीपल, ताकि आप एक्टिविटी अच्छे से करो। पहले हमने क्या बोला, टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन मतलब कोई काम कंप्लीट हो चुका है, सो मदर हैज़ मेड टी, मदर हैज़ नॉट मेड टी, ओके। उसके बाद टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूटी विद टाइम, मदर हैज़ बीन मेकिंग टी सिंस मॉर्निंग। आपने इसको टेंसेस में भी पढ़ा होगा, राइट। कोई भी एक्शन पहले शुरू हुआ और अभी भी वो कंटिन्यू हो रहा है, राइट। तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी विद टाइम। तो मदर हैज़ बीन मेकिंग टी सिंस मॉर्निंग, राइट। तो ये, उसके बाद टॉकिंग अबाउट हाइपोथेटिकल सिचुएशन, इफ मदर मेक्स टी आई विल हैव इट, अगर माँ चाय बनाएगी तो मैं पीऊँगा, इस तरीके से, ओके। उसके बाद टॉकिंग अबाउट असर्शन, मदर डज मेक टी, माँ चाय अवश्य बनाएगी, राइट। तो आपने क्या किया, देयर इज अ असर्शन, आप एकदम श्योर हो कि माँ अवश्य चाय बनाएगी। और फिर टॉकिंग अबाउट पोजेशन, आप पोजेशन के बारे में बात कर रहे हो, राइट। तो इस तरीके से हमने अभी तक 10 रूट सेंटेंसेस सीख लिए हैं, राइट। अगेन एक्टिविटी, और ये किसके ऊपर है, ये रिकैप है। जो 6 पॉइंट हमने क्लियर किया, कॉम्प्लीटेशन, कंटिन्यूटी विद टाइम, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, असर्शन एंड पोजेशन। तो ये 5 है, और जो हमने इसको बहुत सीखा, आप अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत सारे एक्शंस देख सकते हो। कोई भी थॉट लाओ ना, एनी थॉट यू ब्रिंग, वो आप देखो वो कंप्लीट हो चुका है, राइट। क्या कोई ऐसा थॉट जो कि एक्शन के साथ कंटिन्यू कर रहा है, या फिर कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन, कोई भी इमेजिनरी सिचुएशन, यू कैन टॉक अबाउट ऑल दैट। यू कैन टॉक अबाउट असर्शन, कोई किसी चीज़ को असर्ट, आपका कोई फ्रेंड है वो आपको अवश्य नोट्स देगा, माई फ्रेंड विल हेल्प मी, वॉट एवर, माई फ्रेंड डज हेल्प मी। पोजेशन, आप पोजेशन के बारे में बात कीजिए, राइट। तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आई एम 100% श्योर यू कैन मेक वेरी वेरी ब्यूटिफुल सेंटेंसेस। आप बहुत ही अच्छे और ब्यूटीफुल सेंटेंसेस बना सकते हो, एंड दैट इज़ द मैजिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और यही तो है इंग्लिश के लैंग्वेज का मैजिक। मैंने आज आपको 20 रूट सेंटेंसेस बनाने हैं, और ये आई थिंक मैंने 5 अभी आपको एक्सप्लेन किया, और ये नेक्स्ट 5 है।
तो लेट्स सी, मैं आपको एक एक्टिविटी दे रही हूँ, आप इसके ऊपर देखो और आई वॉन्ट कि ईच वन ऑफ यू जो भी ये देख रहे हैं प्लीज़ मेक इट, यू विल इंजॉय दिस, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगेन मैंने एक पिज़्ज़ा ही थीम है, पिज़्ज़ा इज़ योर थीम और आपको पिज़्ज़ा से ही रिलेटेड सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। यू हैव टू फ्रेम सेंटेंसेस रिलेटेड विद पिज़्ज़ा, राइट। और कौन से बेसिस पे आपको फ्रेम करना है, ध्यान से सुनेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ completion, on the basis of continuity with time, on the basis of hypothetical situation, on the basis of assertion, on the basis of possession, इस तरीके से, right? So I'm giving you, चलो मैं आपको 1 मिनट का टाइम देती हूँ और साथ साथ मैं आपको हेल्प भी करती हूँ। कम ऑन, नोटबुक खोलो, यू कैन राइट ऑल्सो इन योर कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हो कॉम्पिटिशन से रिलेटेड सेंटेंसेस, कंटिन्यूटी विद टाइम से रिलेटेड सेंटेंसेस, उसके बाद हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, असर्शन, पोजेशन, राइट। आप कर सकते हैं, कम ऑन, यू कैन डू इट, बहुत ही आसान है ना। चलो 30 seconds टाइम फॉर यू पीपल। यस, ओके, लेट्स सी क्या किया। आई एम 100% श्योर आपने ज़रूर पार्टिसिपेट किया होगा, यू मस्ट हैव पार्टिसिपेटेड। ओके, तो चलो सेंटेंसेस देखें, आर यू रेडी? कैसे सेंटेंसेस बने हैं, लेट्स सी, देखो। यस, सो मदर हैज़ मेड पिज़्ज़ा, कॉम्पिटिशन है ना, एक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हुआ है, माँ ने पिज़्ज़ा बनाया है। ओ, मदर हैज़ बीन मेकिंग पिज़्ज़ा सिंस मॉर्निंग, माँ सुबह से पिज़्ज़ा बना रही हैं, है ना। मदर हैज़ बीन मेकिंग सिंस पिज़्ज़ा, मदर हैज़ बीन मेकिंग पिज़्ज़ा सिंस मॉर्निंग, माँ सुबह से पिज़्ज़ा बना रही हैं। ओह, इफ़ मदर मेक्स पिज़्ज़ा आई विल हैव इट, अगर माँ पिज़्ज़ा बनाएंगी मैं खाऊंगा। मदर डज मेक पिज़्ज़ा, माँ अवश्य पिज़्ज़ा बनाएंगी। मदर हैज़ पिज़्ज़ा, माँ के पास पिज़्ज़ा है, राइट। तो आपने देखा ना, थीम वर्ड क्या था, पिज़्ज़ा, और हमने कितने ब्यूटीफुल सेंटेंसेस बनाए, राइट। तो डोंट यू थिंक आप भी ऐसा कर सकते हो, राइट। थीम एक है और कुछ भी आप उसके ऊपर बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, राइट। ये बहुत ही अमेजिंग है, कि बहुत ही यूज़फुल है। अगर आप इन रूट सेंटेंसेस को फॉलो करोगे तो यू कैन मेक मैनी गुड सेंटेंसेस। और राइट, आपको मैंने एग्जाम्पल भी दिया कि कैसे हर चीज़ रूट से कनेक्टेड है, राइट। तो अगर रूट सेंटेंसेस के ऊपर हम प्रैक्टिस करते हैं तो वी कैन मेक मैनी गुड सेंटेंसेस, राइट। सो रूट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अभी तक मैंने आपको 10 रूट सेंटेंसेस का एग्जाम्पल्स भी दिया, एक्टिविटी भी कराई, और आप इसको अगर फॉलो करते हो तो यू कैन मेक मैनी गुड सेंटेंसेस, राइट। तो ये चीज़ जो है आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, राइट। तो रूट सेंटेंसेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट। किसी भी टॉपिक पे आपको सेंटेंसेस बनाने हो, एनी टॉपिक, आप उसकी क्वालिटी के बारे में बात करो, हैबिट के बारे में बात करो, फ्यूचर के बारे में बात करो, पास्ट के बारे में बात करो, कंटिन्यूटी के बारे में बात करो, असर्शन के बारे में बात करो, डिस्पोजिशन के बारे में बात करो, कम ऑन, योर सेंटेंसेस आर रेडी, यू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, आपने बोल दिया। एंड दैट्स वाई दिस इज़ अ टॉपिक विच इज़ इंग्लिश इन रियल लाइफ में तो हम इंग्लिश ऐसे ही बोलते हैं। हम किसी चीज़ की क्वालिटी के, आपके पास मोबाइल है, व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, यस दिस मोबाइल इज़ गुड। मैं पहले वो वाला नोकिया का मोबाइल यूज़ किया करता था, आई यूज़ टू यूज़ नोकिया मोबाइल, राइट। ओके, मैंने एक मोबाइल खरीदा है, आई हैव बॉट अ न्यू मोबाइल, राइट। सो व्हाट यू आर डूइंग, आप क्या कर रहे हो, आप यही थॉट्स बोल रहे हो, यू आर रिपीटिंग ऑल द थॉट्स जो मैंने आपको आज बता रही हूँ, राइट। तो थॉट्स, अगर रूट सेंटेंसेस की नॉलेज हो तो हम इंग्लिश में बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, राइट।
ग्रामर की पकड़, वोकेबुलरी की पकड़ और रूट सेंटेंसेस की पकड़ प्लस प्रोनाउंसिएशन कैन हेल्प यू टू फ्रेम मेनी गुड सेंटेंसेस एंड रियली दिस इज़ सो अमेजिंग. हमारे लिए कितना आसान हो सकता है, राइट? सो डोंट यू थिंक ये काफ़ी ज़्यादा आसान है? ये बहुत ही आसान है आपके लिए, और आप इसको जितना भी प्रैक्टिस करोगे आपकी प्रोफिशिएंसी बढ़ती जाएगी. आप लो हर दिन 2-3 थॉट्स लो और 2-3 सेंटेंसेस बनाओ एंड इट्स गोइंग टू क्रिएट अ ड्रास्टिक चेंज इन योर राइटिंग. आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होने वाली है. आप कोई भी थीम ले लो, राइट? इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है. इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है कि आपकी राइटिंग सुधरने वाली है. यू कैन स्पीक ऑल्सो. जब सेंटेंस बनाओगे थॉट्स आएंगे, उनको इन सारे पैरामीटर्स पे रखो और आप अपनी इंग्लिश बोलो. Everybody is going to appreciate you on this keynote. Wow, come on, you're making so many sentences by using this root words, root sentences. That's why root sentences plays a very important role. अब इसी के साथ हम आगे भी बढ़ रहे हैं. हमारे पास अभी और 10 रूट सेंटेंसेस हैं. आई एम 100% श्योर आप उसको भी बहुत इंजॉय करने वाले हो और उसमें भी आप बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करने वाले हो, राइट? तो चलो आगे बढ़ते हैं. यस, ये हमारा है नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट एक्शंस टू टेक प्लेस, राइट? यानी कोई एक एक्शन जो अभी होने वाला है, राइट? अभी होने वाला है कोई भी ऐसा काम जो होने वाला है. जैसे मदर हैज़ टू मेक टी. इसका मतलब ये होता है कि माँ को चाय बनानी है. मदर हैज़ टू मेक टी. डज मदर हैव टू मेक टी? क्या माँ को चाय बनानी है? मदर डजेंट हैव टू मेक टी. माँ को चाय नहीं बनानी है, राइट? तो हमने ये देखा इसमें कि वी आर टॉकिंग अबाउट एन एक्शन टू टेक प्लेस. कोई एक ऐसा एक्शन जो होने वाला है, राइट? सो दिस इज आवर रियल लाइफ. होता है ना कि हाँ बस शुरू होने वाली है, खाना पकने वाला है, राजू आने वाला है. ऑल दिस सेंटेंसेस क्या है? एक्शन शुरू होने वाला, मूवी शुरू होने वाली है. ऑल दिस सेंटेंसेस. तो ये सारे रियल लाइफ के थॉट्स हैं, ये रूट सेंटेंसेस हैं, राइट? तो आप इस बेसिस पे आप सेंटेंसेस बना सकते हो, ठीक है? अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट रूट सेंटेंस की तरफ. ये देखिए, टॉकिंग अबाउट सजेशंस इन आवर रियल लाइफ. यू विल नॉट बिलीव कि ये रूट तो बहुत ही कॉमन है. आए दिन कभी ना कभी लोगों को सजेशंस देते ही रहते हैं, राइट? सो जब सजेशंस देना होता है तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? वी आर यूजिंग शुड. जब भी हमें सजेशंस देने हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं शुड. शुड का मतलब होता चाहिए. मदर शुड मेक टी, राइट? माँ को चाय बनानी चाहिए. मदर शुड मेक टी. माँ को चाय बनानी चाहिए. एंड सेम, मदर शुड नॉट मेक टी, राइट? माँ को चाय नहीं बनानी चाहिए, राइट? तो कभी ऐसा होता है ना, आप अपने फ्रेंड से बात करते हो, किसी से बात करते हो और आप उसको सजेशंस देते हो, राइट? यू शुड स्टडी. तुम्हें इम्प्रूव करना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए. यू शुड इम्प्रूव योर इंग्लिश. तुम्हें इम्प्रूव करना चाहिए. तो शुड से आप कितने सारे सेंटेंस बनाते हो, राइट? तो आपको नहीं लगता शुड क्या है? एक रूट सेंटेंस है और उससे रिलेटेड हम कितने सारे शुड वाले सेंटेंसेस बना सकते हैं, राइट? यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर. आपको एक डॉक्टर से मिलना चाहिए. यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर. यू शुड ओबे ट्रैफिक रूल्स. हर जगह तो शुड आ रहा है ना. तो डोंट यू थिंक should is related to your real life situations? So that is why these root sentences are related in real life also. तो should से आप बहुत सारे sentences बनाइए. ये आपका root sentence है और आप जितने root sentences पे आप focus करोगे आपका उतना ज़्यादा efficiency improve होगा. Okay, now let's move next. तो अभी तक हमने बात की है talking about actions to take place, and then we have spoken about talking about suggestion. Talking about request and respect, right? आपने पढ़ा होगा वर्ड्स के बारे में भी कि हमें अगर respect और request की बात करते हैं तो वहाँ पे हम would लगाते हैं. For example, mother would like to make tea. माँ चाय बनाना चाहेंगी. Mother would make tea. माँ चाय बनाएंगी. ऐसा भी आप दोनों तरीके से बात कर सकते हैं. दोनों तरह, तो both the sentences are correct. So you can talk about request and respect.
right? So this is a wonderful root. Yeah, आप would use करते हो. I would like to say something, right? It's a kind of request. I would like to go home early. मैं आज जल्दी घर जाना चाहूँगी, right? So don't you think in all these situations आप use कर रहे हो sentences को अपने real life में, right? तो this is the another root that we have to use कि we are talking about request and respect, and that is something which is related with our real life. आप बोलते हो ना कि कभी कभी हम किसी को रिक्वेस्ट से बुलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ना आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर कपिल शर्मा ऑन स्टेज to come on stage and say a few words about the given topic. So whatever the topic is, I would like to call Mohan to come on the stage, right? I would like to place the order. आप would use कर रहे हो ना, तो it's kind of request, और ये आपके real life से connected है. Would I ask you something? I would like to say something, right? तो don't you think would is a root? वुड एक रूट है, वुड एक थॉट है, और अपने रियल लाइफ में आप इससे कितने सारे सेंटेंसेस बना सकते हो. यू कैन मेक मैनी सेंटेंसेस यूजिंग वुड इन योर रियल लाइफ. सो दैट्स वाई वुड एक रूट सेंटेंस है. जैसे हमने शुड यूज़ किया वैसे आप वुड यूज़ कर सकते हो, एंड यू कैन ब्रिंग ड्रास्टिक चेंजेस इन योर कॉन्वर्सेशन, राइट? नाउ लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट. टॉकिंग अबाउट केपेबिलिटी, राइट? कोई काम अगर आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैपेबिलिटी, राइट? तो कैपेबिलिटी भी एक रूट है. कम ऑन, इस रूट को तो आप लेकर कितने सेंटेंस बना सकते हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल, मदर कैन मेक टी. माँ चाय बना सकती है. मदर कैन मेक टी. माँ चाय नहीं बना सकती. मदर कान मेक टी. कैन मदर मेक टी? क्या माँ चाय बनाएगी? इस तरीके से, राइट? बना सकती है. और यू कैन सी हम कैन, वो ड्राइव कर सकता है. ही कैन ड्राइव. वो ड्राइव नहीं कर सकता. ही कान ड्राइव. कैन ही ड्राइव? आप ऐसा बनाते हो. मैम यू नो, आप लोग ऐसे बोलते हो ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एक्शन जो है अगर हम उसको फिजिकली भी कर सकते हैं. क्या तुम 100 किलो उठा सकते हो? कैन यू लिफ्ट 100 kg? तो ये क्या रूट है? दिस इज़ रूट. कैन यू सॉल्व दिस सम? क्या तुम इस सम को सॉल्व कर सकते हो? सो दिस इज़ फिजिकल, राइट? कैपेबिलिटी, राइट? सो ऑल दिस सिचुएशन, ये सारे सिचुएशंस आप देख रहे हो ना, दीज आर ऑल रिलेटेड विथ योर रियल लाइफ, राइट? और ये रूट वर्ड्स के ऊपर हम प्रैक्टिस करते हैं तो यू कैन यूज़. आप बोलते हो आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम. यू आर टॉकिंग अबाउट द कैपेबिलिटी. मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ. सो देयर इज़ अ कैपेबिलिटी रिलेटेड विद दिस. सो इन आवर रियल लाइफ ऑल्सो हम कितनी दफ़ा ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं, बट वी शुड बी अवेयर कि इसके पीछे ये रूट काम कर रहा है. फॉर ऑल द सिचुएशंस, फॉर ऑल द सेंटेंसेस, दिस रूट इज़ वर्किंग. तो अब रूट को कंसिडर करके सेंटेंसेस बनाना है, एंड इट्स वेरी इजी. ये बहुत आसान है. द ओनली थिंग यू नीड कि आपको इंटरेस्ट लगाना है, और ये जितने भी मैंने रूट्स पढ़ाए हैं आपको, यू हैव टू फोकस ऑन इट. इसके ऊपर फोकस करो एंड देन यू कैन मेक सेंटेंसेस. चलो नेक्स्ट. सो टॉकिंग अबाउट पॉसिबिलिटी. अब ऐसा होता है ना कि संभावना. माँ चाय बनाएगी. मदर मे मेक टी. माँ हो सकता है मदर मे मेक टी. इसका मतलब माँ चाय बना सकती हैं. माँ चाय नहीं बना सकती. तुम्हें लगता है, डू यू थिंक मदर मे मेक टी? आपको लगता है माँ चाय बनाएंगी. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉसिबिलिटी, राइट? और हम पॉसिबिलिटी रियल लाइफ में भी तो यूज़ करते हैं ना, राइट? आप यूज़ करते हो ना जब आप श्योर नहीं होते हो. देन व्हाट यू आर डूइंग? यू आर टॉकिंग अबाउट अ पॉसिबिलिटी. आप पॉसिबिलिटी के बारे में ही तो बात करते हैं ना. यू आर टॉकिंग अबाउट दैट. आप उसके बारे में ही बात कर रहे हो, राइट? इट मे रेन टुडे. आज बारिश हो सकती है. ही मे कम टुडे. वो आज आ सकता है, राइट? ही मे कॉल यू. वो आपको कॉल कर सकता है. सो यू आर मेकिंग. आप अपने रियल लाइफ में भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना रहे हो जिसमें कि ये पॉसिबिलिटी का जो रूट एलिमेंट है वो रिफ्लेक्ट होता है, एंड यू आर मेकिंग इट. आप इसके ऊपर बनाते हैं एंड यू आर इम्प्लीमेंटिंग इट. सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट रूट. तो अभी तक हमने देखो, अभी हमने क्या बताया? एक्शंस टू टेक प्लेस, सजेशंस, रिक्वेस्ट एंड रिस्पेक्ट, कैपेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी. सो दीज आर आवर नेक्स्ट 5 रूट्स. ये हमारे
ये 5 रूट्स हैं. कम ऑन, डोंट यू थिंक ये कितना अच्छा है ना कि हम रूट्स पढ़ रहे हैं और उसके ऊपर हम सेंटेंसेस बना रहे हैं. कम ऑन, हमारे थॉट प्रोसेस कितना एक्टिव होने वाला है अगर हम इन रूट्स को फॉलो करके सेंटेंसेस बनाने वाले हैं. आप लोग रेडी हो? मुझे पता है इस सेशन के बाद आप लोग बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने वाले हो. आपकी नोटबुक भर जाने वाली है अगर आप इनको प्रैक्टिस करोगे, और आपकी राइटिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी होने वाली है. राइट, सो दिस इज़ अ वंडरफुल एक्टिविटी. आप इसको करो. इट्स अ वंडरफुल रूट एलिमेंट्स जो मैंने आज पढ़ाया है उसको आप करो. चलो अब हम रिकैप करके फिर एक्टिविटी करते हैं. सो अगेन आप सोचो, सेम थीम है, सेम थीम मैंने आपको दिया वापस से. पिज़्ज़ा थीम है और पिज़्ज़ा आपका थॉट है. उसके ऊपर आपको रूट सेंटेंसेस बनाने हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्शंस टू टेक प्लेस, on the basis of suggestion, on the basis of request and respect, on the basis of capability, and on the basis of possibility. Right? Chalo, I'm giving you few minutes, not few minutes. I can hardly give you 30 to 40 seconds. So आप एक बार सोच लो. You can think at least. Thinking process हो सकती है. एक आध दो सेंटेंस अगर आप बना पा रहे हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख सकते हो. राइट, तो डोंट यू थिंक ये कितना अमेजिंग है आपके लिए, कितना अच्छा है कि आपने रूट्स लिया और आप उसके ऊपर सेंटेंसेस बनाए. कोई भी थॉट आए ना आपके दिमाग में, आप उनको इन 20 रूट सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना. सो रियली आप बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग कर सकते हो और इंग्लिश बोल भी सकते हो. राइट, और आप इसको प्रैक्टिकली करो. आप अपने घर पे आज से इसको करना शुरू करो. तो लेट अस सी हमने क्या एग्जाम्पल्स बनाए हैं. मैंने आप लोग के लिए बनाए हैं, तो लेट्स सी. पहला है मदर हैज़ टू मेक पिज़्ज़ा. मदर को पिज़्ज़ा बनाना है. मदर शुड मेक पिज़्ज़ा. माँ को पिज़्ज़ा बनानी चाहिए. मदर वुड लाइक टू मेक पिज़्ज़ा. माँ पिज़्ज़ा बनाना चाहेंगी. मदर कैन बेक पिज़्ज़ा. माँ पिज़्ज़ा बना सकती हैं. मदर मे बेक पिज़्ज़ा. माँ पिज़्ज़ा बना सकती है. राइट, तो यहाँ पे कैन एबिलिटी और में पॉसिबिलिटी के सेंस में आया है. राइट, तो आप भी ऐसा कोई भी थीम लेकर, पिज़्ज़ा, कोई भी थीम जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उसके ऊपर आप रूट सेंटेंसेस को मिक्स करके सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं. ओके, चलो फिर मैं अपने नेक्स्ट लास्ट 5 जो है, अभी तक हमने 15 रूट सेंटेंसेस कवर कर लिए हैं और अभी हमारा सिर्फ लास्ट 5 रूट सेंटेंसेस बचा है. सो लेट्स हैव अ लुक. ओह, टॉकिंग अबाउट डिस्पोजिशन. डिस्पोजिशन का मतलब होता है अगर आप कोई काम किसी को सौंपते हो, मेंटली कोई काम अगर आप किसी को सौंपते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्पोजिशन. फॉर एग्जाम्पल, लेट मदर मेक टी. माँ को चाय बनाने दो. माँ को चाय बनाने दो. लेट अस मेक टी. चलो चाय बनाते हैं. राइट, आप ऐसा बोलते हो ना रियल लाइफ में, उसको ये काम करने दो, चलो हम चाय बनाते हैं, चलो शॉपिंग करते हैं. राइट, ये क्या है? ये ऑल दीज आर रिलेटेड विद डिस्पोजिशन. आप काम किसी को मेंटली सौंप रहे हो. एंड इन योर रियल लाइफ आप ऐसा करते हो, मुझे पता है. यू आर डूइंग इट. इनफैक्ट हम सब करते हैं. हम कोई ना काम, लेट हिम डू दिस वर्क, उसे ये काम करने दो. लेट हिम सॉल्व हिज प्रॉब्लम, उसे अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने दो. राइट, लेट हिम स्पीक, उसे बोलने दो. राइट, लेट हिम अरेंज द रूम, उसे रूम अरेंज करने दो. राइट, यू आर मेकिंग इट ना, आप करते हैं. राइट, तो आप डिस्पोजिशन से भी रूट वर्ड लेकर सेंटेंसेस बना सकते हो. सो दिस इज़ वेरी इजी. दिस इज़ वेरी वेरी इजी एंड बहुत आसान है आपके लिए. तो डिस्पोजिशन को आप फॉलो करो और बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बनाओ. ओके, नेक्स्ट इज़ रिकलेक्शन, यानी पुरानी बातें. कभी कभी हमारे दिमाग में ना हम ऐसा किया करते थे, हम वैसा किया करते थे, हम वो खेला करते थे, हम गप्पे लड़ाया करते थे, वॉट एवर. आई एम स्पीकिंग वेरी बेसिक एग्जाम्पल्स ताकि वो आपके दिमाग में एकदम से सेट हो जाए. सो दीज आर ऑल द बेसिक एग्जाम्पल्स. राइट, सो आई वॉन्ट टू मेक दिस सेशन एज सिंपल एज पॉसिबल, जो आपको समझ में आए, एंड देन ओनली दिस कुड हेल्प यू. राइट, तो रिकलेक्शन मतलब होता है पास्ट में. यूज टू, मदर यूज टू मेक टी, यानी माँ चाय बनाया करती थी. राइट, माँ चाय बनाया करती थी. डिड मदर यूज टू मेक टी, क्या माँ चाय बनाया करती थी? मदर डिडंट यूज टू मेक टी, माँ चाय नहीं बनाया करती थी. राइट, तो यू कैन सी रिकलेक्शन है ना, हम पास्ट में जा रहे हैं, रिकलेक्ट कर रहे हैं. राइट,
आपने भी अपने कॉलेज लाइफ में बहुत कुछ ऐसा किया होगा, स्कूल डेज में, बचपन में, और आप उन सारे, वो भी एक थॉट है, दैट इज़ ऑल्सो अ रूट, और आप उसको रिफ्लेक्ट करते हो, लेकिन कभी कभी आपको वो सेंटेंस नहीं मिल पाता कि हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट. सो दैट इज़ ऑल बेस्ड ऑन रिकलेक्शन. और वो सभी कैसे बेस्ड है? दैट इज़ ऑल बेस्ड ऑन रिकलेक्शन. तो कितना अमेजिंग है जब हम रिकलेक्ट करते हैं अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को, और हम उससे वापस बैक मेमोरीज में ले जाते हैं, राइट? तो रिकलेक्शन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो जब भी आपके दिमाग में कोई रूट थॉट आता है, राइट, और उसको आप रिकलेक्ट करना चाहते हो, तो इस एक्सप्रेशन से आप सेंटेंसेस बना सकते हो. इस रूट एलिमेंट के साथ आप सेंटेंसेस बना सकते हो. ओके, चलो हम ना नेक्स्ट करते हैं. ओके, ऑब्जर्वेशन मतलब समटाइम्स इट हैपन्स कि हम लोगों को कुछ ऑब्जर्व करते हैं, हम उनको देखते हैं कि हमारे आमने सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, राइट? सो दैट इज़ नोन एज ऑब्जर्वेशन, राइट? फॉर एग्जाम्पल, मदर कीप्स मेकिंग टी. माँ चाय बनाती रहती हैं, समथिंग लाइक दैट. मदर हैज स्टार्टेड मेकिंग टी. माँ ने चाय बनाना शुरू कर दिया है, राइट? मदर वॉन्ट्स टू मेक टी. माँ चाय बनाना चाहती हैं, राइट? तो आपने देखा ये क्या है? ये ऑब्जर्वेशन वाले रूट एलिमेंट्स हैं, और इसके बेसिस पे भी आप बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बना सकते हो, राइट? यू कैन फ्रेम मैनी सेंटेंसेस. अगर आप इन रूट सेंटेंसेस को अपने डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते हो, देन यू कैन मेक इफेक्टिव एन नंबर ऑफ सेंटेंसेस, राइट? बिकॉज कोई ना कोई सिचुएशन ऐसा आता है जिसमें हमें रिफ्लेक्ट करना होता है कि ये काम हो रहा है. वो ऐसा करते रहता है. ही कीप्स ऑन डूइंग दिस, ही कीप्स ऑन टॉकिंग, ही कीप्स ऑन लाफिंग, ही कीप्स ऑन डिस्टर्बिंग, ही कीप्स ऑन इनकरेजिंग. कम ऑन, यू कैन मेक एन नंबर ऑफ सेंटेंसेस. आप बनाते हैं एंड यू कीप ऑन मेकिंग इट, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट, राइट? सो मदर हैज स्टार्टेड मेकिंग टी. So this is related with our observation. Now next we will talk about comment. Right? कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ के बारे में अपने फीडबैक देते हैं, हम कमेंट करते हैं, अपने थॉट्स को प्रेजेंट करते हैं. सो दैट इज़ नोन एज योर कमेंट. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल लिखा है कि टू मी टी इज़ अ सोशल ड्रिंक. मेरे लिए चाय एक सोशल ड्रिंक है. तो यू आर कमेंटिंग, राइट? टू मदर मेकिंग टी इज़ अ हाउस होल्ड वर्क. माँ के लिए तो चाय बनाना एक घर का काम है. तो आप कमेंट कर रहे हो, राइट? सो यू आर मेकिंग अ कमेंट. कुछ भी. टू मी टी इज़ अ वेरी हेल्दी ड्रिंक. कुछ भी. सो वट एवर, आप किसी भी सेंटेंस, कोई भी थॉट आया और आपको रूट सेंटेंसेस लेकर उसको कमेंट करके फॉर्म में आपको बनाना है. सो दिस इज़ द रूट सेंटेंसेस. And in our life, in our real life, in English in real life, we are using it. हम यूज़ करते हैं इसको. We are using it in our day-to-day conversation. So this is something which is very much amazing. ये बहुत ही अच्छा है अगर आप इसको फॉलो करते हो. Now, revelation. Revelation is like an art. For example, आप रिवील करते हो अपने थॉट्स को, whatever you are thinking. For example, making tea is an art. चाय बनाना आसान एक कला है. चाय बनाना एक कला है. मेकिंग टी इज़ ईजी. चाय बनाना आसान है, राइट? सो व्हाट इज़ दिस? आप रिवील करते हो अपने जो आपके थॉट्स है रिलेटेड विद दैट. सो दिस इज़ द लास्ट रूट, राइट? सो आप देख सकते हो कि रूट सेंटेंसेस बनाना कितना आसान है. इट्स सो ईजी, राइट? तो अभी जो हमने 5 रूट पढ़े उसका एक रिकैप करते हैं. सो दैट इज़ डिस्पोजिशन. जब आप काम मेंटली किसी को सौंपते हैं, दैट इज़ डिस्पोजिशन. रिकलेक्शन, जब आप पास्ट में किसी काम को आपने करते थे और आप शेयर कर रहे हो, मैं ये किया करता था. ऑब्जर्वेशन, जैसे माँ अभी पिज़्ज़ा बना रही है, मदर कीप्स मेकिंग पिज़्ज़ा. कमेंट, टू मी टी इज़ अ सोशल ड्रिंक. रिविलेशन, टी इज़ मेकिंग टी इज़ एन आर्ट. इस तरीके से मेकिंग टी इज़ ईजी. नाउ अगेन यू हैव टू अगेन यूज़ ऑल दिस सेंटेंसेस फॉर द लास्ट टाइम इन अ फॉर्म ऑफ एक्टिविटी. तो क्या आप बता सकते हो? दिस इज़ द एक्टिविटी. मैंने सेंटेंसेस बना दिए हैं. फॉर एग्जाम्पल, रिकलेक्शन के तौर पे,
मदर यूज टू मेक पिज़्ज़ा, माँ पिज़्ज़ा बनाया करती थी. मदर कीप्स मेकिंग पिज़्ज़ा, माँ पिज़्ज़ा बनाती रहती हैं. ठीक है. पिज़्ज़ा इज़ एन इटालियन डिश. आपने कमेंट करके बताया कि पिज़्ज़ा क्या है, एक इटालियन डिश है. और रिवलेशन, मेकिंग पिज़्ज़ा इज़ डिफ़िकल्ट. पिज़्ज़ा बनाना क्या है, डिफ़िकल्ट है. और डिस्पोजिशन, लेट मदर मेक पिज़्ज़ा, राइट. तो आप लोग भी कर सकते हो. यू पीपल कैन ऑल्सो मेक इट, राइट. और अभी जो मैंने एक स्लाइड बनाई है आप लोगों के लिए, जो सी दिस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको कंसेप्ट समझ और भी क्लियर हो जाएगा. मैंने यहाँ पे जैसे मैंने आपको जो अभी एक्टिविटी कराई है उसमें मैंने आपको बताया था कि टी के बारे में, और यहाँ पे मैंने इसमें ब्रश टीथ लिखा है. तो ब्रश टीथ मैंने एक थॉट रखा और उसके ऊपर फिर मैंने 20 सेंटेंसेस बनाए. तो क्वालिटी में मैंने बताया कि माई टीथ आर स्ट्रॉन्ग. हैबिट में आई ब्रश टीथ. पास्ट में आई ब्रश टीथ. फ्यूचर में आई विल ब्रश टीथ. कंटिन्यूटी में आई एम ब्रशिंग टीथ. कॉम्पिटिशन में आई हैव ब्रश टीथ. कंटिन्यूटी विद टाइम में आई हैव बीन ब्रशिंग माई टीथ सिंस चाइल्डहुड. हाइपोथेटिकल में इफ आई ब्रश माई टीथ विल नॉट डिके. असर्शन में आई डू ब्रश टीथ. पोजेशन में आई हैव गॉट गुड टीथ. उसके बाद टेक प्लेस में आई हैव टू ब्रश टीथ. सजेशन में आई शुड ब्रश टीथ. रिक्वेस्ट में आई वुड लाइक टू ब्रश टीथ. कैपेबिलिटी आई कैन ब्रश टीथ. पॉसिबिलिटी आई मे ब्रश टीथ. डिस्पोजिशन लेट मी ब्रश टीथ. रिकलेक्शन आई यूज टू ब्रश टीथ विथ टूथ पाउडर. Observation, I have started brushing teeth. Comment, to me, brushing teeth is an important work. Revelation, brushing teeth is a necessary exercise. So I hope आप सभी को रूट वर्ड्स के बारे में पता चल गया होगा. एंड आई होप आज मैंने जितने भी आपको टिप्स, टेक्निक्स और एक्टिविटीज़ आपके साथ की, आप लोगों ने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा होगा और उसमें आप उसको अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करेंगे. ओके. लास्ट मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि अगर आपकी लाइफ में एक्शन है, इफ़ यू हैव एन एक्शन लेकिन विज़न नहीं है, यू डोंट हैव सेट अ गोल, तो दैट लीड्स टू कन्फ्यूज़न. वो क्या करता है, वो कन्फ्यूज़न को लीड करता है. और अगर आपके पास विज़न है और एक्शन नहीं, यू नॉट डूइंग एनीथिंग. विज़न है, सोच बहुत लिया हमने करना है, लेकिन अगर आपके पास एक्शन नहीं है, सो दैट लीड्स टू ओनली इमेजिनेशन. आप बस इमेजिन करते रह जाओगे. लेकिन अगर आपके पास विज़न है और आपके पास एक्शन है, तो ही हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है. दैट लीड्स टू आवर ट्रांसफॉर्मेशन, राइट. सो विद दिस माई बेस्ट विशेज़ आर विथ यू. आपको बहुत ही आगे बढ़ना है आप सभी को. वी हैव टू कीप ऑन प्रोग्रेसिंग. इम्प्रोवाइजेशन और इंग्लिश तो एक ऐसी स्किल है जिसके लिए आई मस्ट से कि आप लोग ज़रूर से ही हार्ड वर्क करने वाले हो. एंड विद दिस वी हैव टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ आवर सेल्स. वी हैव गॉड ब्लेस अस ऑल. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू. થેન્ક યુ સો મચ મેડમ. મિત્રો, આપણે જોયું કે આજે પિંકી મેમે આપણને એટલું બધી મસ્ત ટિપ્સ અને ટેકનિક્સ આપી કે જેનાથી આપણે ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ આપણે કેવી રીતે સારી રીતે ડેવલપ કરી શકીએ, કેવી રીતે ફ્લુઅન્ટલી બોલી શકીએ. પ્લસ એમણે ઘણું બધા એક્ઝામ્પલથી આપણને દેખાડ્યું કે છે ને આપણે આપણી રોજિંદી જે લાઈફ છે એમાં ઇંગ્લિશને કેવી રીતે ઇમ્પોર્ટન્સ આપવું જોઈએ. એક નાની નાની વસ્તુ એમણે જે શીખવાડી, જે અગર આપણે આપણી લાઈફમાં રિયલીમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીશું તે આપણને વધારે હેલ્પ કરશે ફ્લુઅન્ટલી ઇંગ્લિશ બોલવા માટે. કરિયરમાં પણ આપણને ઘણી બધી હેલ્પ કરી શકે છે. જેમ કે હું કહું કે મેડમે ઘણું બધું એવું પણ બતાવ્યું કે એન્વાયરમેન્ટ આપણે ઘરમાં કેવી રીતે ક્રિએટ કરવું, કેવી રીતે આપણે બધા જોડે ઇંગ્લિશમાં નાની નાની સેન્ટેન્સ બોલવાનો પ્રયત્ન કરો. એ રીતે અગર આપણે ધીમે ધીમે કરીને 1 by 1 સ્ટાર્ટ કરીશું તો બહુ જ જલ્દી એ દિવસ આવશે કે આપણે બહુ ફટાફટ ઇંગ્લિશમાં કન્વર્ઝેશન કરતા થઈ જઈશું, રાઈટ. તો મેમે ઘણું બધું બીજું પણ કીધું કે આપણે જેમ કે બધાને હવે વેબ સિરીઝ છે, મૂવીઝ જોવા તો બધા એક્સાઇટેડ જ હોય છે. તો અગર એ વસ્તુ આપણે ઇંગ્લિશમાં જોઈશું તો એનાથી આપણું ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ પરનું જે પ્રભુત્વ છે એ વધારે સારું ડેવલપ થઈ શકે છે. મેડમે જણાવ્યું કે ઇંગ્લિશ
આપણે મતલબ આપણે જે ડિક્શનરી યુઝ કરીએ છીએ ઇંગ્લિશ ટુ ગુજરાતી, મેમે એ પણ એક બહુ સારી વાત કીધી છે મેમ, કે આપણે હંમેશા ઇંગ્લિશ ટુ ઇંગ્લિશ ડિક્શનરીનો યુઝ કરવો જોઈએ, કે જેનાથી આપણને બીજા બધા પણ બેનિફિટ થઈ શકે, કે પ્રોનાઉન્સિએશન, આપણું ગ્રામેટિકલ જે સેન્ટેન્સ છે એ કેવી રીતે વિધાઉટ એની ભૂલ વગર આપણે બનાવી શકીએ, નાની નાની મિસ્ટેક આપણે કરેક્ટ કરી શકીએ. તો એ બહુ સારી ટ્રીક મેમ તમે આપી છે. તો આઈ હોપ કે તમે બધાએ આજનો સેશન બહુ સારી રીતે એન્જોય કર્યો હશે અને ઘણું બધું જ્ઞાન મેળવ્યું હશે. તો હવે મિત્રો તમારા આજનું સેશન કેવું લાગ્યું એ અમારા માટે જાણવું ખૂબ જ જરૂરી છે. તો હું એવી આશા રાખીશ કે આપણી જે સ્કોપની વેબસાઇટ છે એના પર તમે બધા ફીડબેક ફોર્મની લિંક આપી છે, એ ફીડબેક ફોર્મ ભરો અને તમારા અભિપ્રાયો અમને આપતા રહો. તો બસ આજના સાથે હવે આજે અમે તમારા પાસેથી વિદાય લઈએ છીએ. કાલે આપણે ફરીથી મળીશું આ જ ટાઈમે આ જ ચેનલ પર એક નવા ટોપિકની સાથે. ત્યાં સુધી જય હિન્દ.